کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آپ کو انجینئر اچھا نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کے بابے اچھے نہیں لگتے. بابوں تیار ہو جاؤ، اب بابوں کے بابا آ رہے ہیں. میرے نبی صحائی کو نہیں، تیرے بابے تشائی کو نہیں. یار وہ 10-12 سال 15 سال بھی اندر رہتے، لیکن جو انہوں نے عوام کے دلوں کے اندر توحید کی شمع جلا دی ہے، وہ کوئی مولا کوئی بندہ ختم نہیں کر سکتا. جو انجینئر صاحب قیاد میں تھے، حالات و واقعات آپ کے سامنے تھے، کبھی ضمانت نہیں لگ رہی، کبھی وہ قرآن بورڈ آ گیا بیچ میں، نظراتی کونسل آ گئی، تو ایک ماحول ایسا بنایا جاتا ہے جیسے انجینئر تو گیا. ڈر گئے تھے آپ؟ سر دیکھیں نا، شعر آزاد ہوا ہے تو ایک دل میں جذبہ تھا دیکھنے کا، تو سوچا کہ جا کے لائیو دیکھیں، سامنے بیٹھ کے دیکھیں. اللہ اکبر. جذبہ آیا، جنون آیا، جیسے ایک سرپرست اپنی لیڈ کرتا ہے ٹیم کو، ویسے آیا. اور کوئی بھی نظر نہیں آیا کہ جیسے ایک بولتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ لگے ہیں آج کل، بالکل نظر آیا. ایسا ہے کہ جنہوں نے کروانا تھا ان کا ہو گیا، ان کا ہو گیا. دیکھیں الفاظ جیسے لگ رہا تھا انجینئر کی روح آ گئی ہے. شہباز شریف صاحب میں جو ہے نا، انجینئر صاحب کی روح آ گئی تھی نا. لیکن اللہ پہ یقین تھا کہ یہ باہر آئیں گے، اور ایک وسوسہ آتا تھا کہ اگر یہ نہ آئے تو کوئی اتنا نہیں ہے. انہوں نے دین کے لیے جتنا کام کر گئے ہیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن، ڈیمیج انہوں نے ڈن کر دیا ہوا. انجینئر صاحب آئے، آج آپ نے دیکھ لیا ان کا پیشن، ان کا موچا ختم تو نہیں ہوا، ڈر تو نہیں گئے، کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ تو نہیں ہو گیا. وہ اگلے دن میرا دوست تھا، میں نے باہر جانا نا، انہوں نے بولا ہے وہ آپ کا انجینئر والا ویزا کر دوں. میں کہا انجینئر کا نام نہ لو، وہ ڈر جائیں گے جی، بابے تو ڈر جان دے جی. وہ مسکرا کر چلا گیا. ویسے بھی لاجیکلی اگر دیکھا جائے نا، وہ پڑھا لکھا بندہ دیکھے تو انہوں نے حوالہ دیا، بس انہوں نے خود سے نہیں کہا. اگر خود کہتے ان کی تعلیمات ہمیں اس طرح کی ملی ہیں، اگر یہ خود کہتے نا تو ہمارا بھی یہی دعویٰ ہوتا کہ 295 سی لگنی چاہیے تھی. لیکن بہت نان وائلنٹ جماعت تھی نا، اس کی جو ہے نا پاکستان علی بھائی کے الفاظوں میں، ہمارے الفاظوں میں منجی ٹھوک دی گئی ہے، وہ کمپلیٹلی طور پہ بیان کر دی گئی ہے. یہ اللہ پاک نے اس شر میں سے ہمارے لیے خیر نکالا ہے. الحمدللہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے. چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ایک خوشی کا اظہار کرنا جی 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 کہ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں ایک آج کے دور میں، کہ مجھے اس دور میں انجینئر محمد علی مرزا جیسے استاد ملے ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ڈر گیا استاد، اپڈیٹ ہو گیا سافٹ ویئر کیا ہے. سر جس کے اندر توحید ہے وہ نہیں ڈرتا. اللہ اکبر. وہ جو بندہ توحید کے ساتھ ہے نا، وہ نہیں ڈرتا. کیا کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ مار دیں گے نا بس، اور کیا. میں نے تو اسی دن جو ہے اپنے مائنڈ سے سیشن دے دیا تھا کہ یہ بندہ جان بوجھ کے صرف ایک بغض کی وجہ سے اندر کیا گیا ہے. یہ بندہ باہر ہونا چاہیے، پبلک میں ہونا چاہیے، ہمارے لیے بیسٹ ہے یہ بندہ. کیونکہ انہوں نے ایک ہتھیار اپنا خود سے حکومت پہ پریشر ڈال کے خود سے بنایا تھا کہ کوئی بھی اگر ہماری بات نہ مانتا تو اس پہ یہ 295 سی تو بنا جھوٹی لگا دو. اللہ رب العزت کی ذات بہت طاقت والی ہے. جن نے ان کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں انہیں دکھا دیا جی 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 کہ میرے ولی کے ساتھ تم ایسا کرو گے. اللہ اکبر. ایک تو یہ حالات و واقعات بتا رہے تھے، شاید انجینئر سب باہر آئیں گے ہی نہیں، اور یہ وہ. تب کیا آپ کی سوچ تھی، کیا فکر تھی، کیا لگتا تھا کیا ہوگا؟ یہ سارے بونے لگتے تھے جتنے علماء ہیں، کوئی وسوسہ نہیں تھا. یہ 295 سی کا مسئلہ چل رہا تھا نا، تو دل میں یہی بات دھڑکتی تھی کہ کیوں نہیں اکیڈمی پہلے گئے، زیارت کیوں نہیں کی انجینئر صاحب کی. پتہ نہیں اب قسمت موقع دیتی ہے یا نہیں، لیکن ہم بڑی دعائیں کرتے تھے، امید بڑی تھی.
الحمدللہ सब मुस्लिम। الحمدللہ. तो मैं ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس دن جو تقریر کی ہے لگ رہا تھا मैंने کہ कहा نظام प्राइम وہ آئی मिनिस्टर ہے. ने नहीं की ये तकरीर, ये हमारे मिर्जा साहब ने तकरीर की है इंशाअल्लाह। دیکھیں جی मिर्जा साहब حیران کر دیا نا. حیران کر دیا. کیا بات. میں نے سارا بتایا, میں ادھر گیا تھا, انہوں نے بولا ہم نے استاد صاحب سے بات کر لی ہے, مسجد میں آؤ کلمہ پڑھو, تم مسلمان رہے ہی نہیں. اللہ اکبر. وہ کون تھے؟ وہ میرے دوست تھے, ابھی بھی میرے ساتھ. وہ مولوی صاحب, وہ مسجد والے, وہ کون تھے؟ بریلوی تھے, دیوبندی تھے, کون تھے؟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾੜਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਅਲੀ ਭਾਈ ਦੱਬਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜੋ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਬਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜੋ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਬਾ ਨਾ ਲਿਆ. کیا بات ہے. ایک ایسا بندہ جو صرف کہتا ہے, پہلے جملہ میں صرف کہوں انجینئر صاحب کا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تو سر اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے. تو جو لوگ انجینئر صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, جو علماء کھڑے ہوئے ہیں, ان کا کیا سٹیٹس رہ گیا یا ان کا کیا کچھ بھی فیوچر نہیں ہے؟ دیکھے نا, ضلالت ہو گئی ہے, ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. تو کہتے ہو, میں نے بتایا, میں نے کہا بھائی وہ تو ضمانت ہو گیا. اچھا رہا تو نہیں نہ ہوا؟ میں نے کہا بھائی رہا بھی ہو جائے گا. اچھا جب رہا ہوا, میں نے کہا بتایا رہائی ہو گیا. اچھا لیکچر تو نہیں نہ ہوا؟ میں نے کہا بھائی لیکچر بھی ہوگا. ابھی 21 دسمبر آئی ہے, میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں, 21 دسمبر ہے, میں نے کہا جا کے میں پکچر بنا کے آپ کو شیئر کروں گا. جی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے انہیں, تو بہت خوشی ہوئی دیکھ کے انہیں, تو چہرے پہ ان کے نور بہت خوبصورت ہیں. جتنا ویڈیو میں آتے ہیں اس سے زیادہ وہ خوبصورت یہاں پہ ہیں. ایسے بتایا کہ جو طاقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں تو وہ بزرگوں کے پاس سکیں. اگر طاقتیں ہوتی ہیں تو اس وقت علی بھائی باہر نہ ہوتے ہوں اور یہ بزرگوں کے معنی والے اندر نہ ہوتے. جو کرامتیں کہتی ہیں نا, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یہ زندہ کرامت ہے. جس پارٹی نے انجینئر صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا تھا, وہ پارٹی اپڈیٹ ہوئی, پھر وہ پارٹی کا رہنما اپڈیٹ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھیا. वालेकुम अस्सलाम. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ मेरा नाम मोहम्मद उसामा. محمد उसामा. محمد اسامہ بھائی. کہاں سے آئے ہیں؟ लाहौर से. لاہور سے. जी सर. کیسا رہا جی سفر؟ سفر بہت اچھا رہا. ایکسائٹمنٹ تھی کہ علی بھائی سے دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ, تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی ہے الحمدللہ. فرسٹ ٹائم آیا اکیڈمی؟ میں سیکنڈ ٹائم 2 سال پہلے آیا تھا. 2 سال پہلے آئے تھے. جی 4 ماہ کا طویل وقفہ. جی جی. علماء نے تو بڑی باتیں کی ہوں گی. بہت ساری کی ہیں, علماء نے کی ہیں, دوست احباب نے کی ہیں, محلوں والے نے کی ہیں, لیکن دل کو تو نہیں نا کوئی چینج کر سکتا. الحمدللہ. الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا, تو انشاءاللہ وہ ایسے ہی رہے گا اللہ کے فضل سے. ایک گن سے نکال کرنا ذریعہ علی بھائی بنے ہیں, فضل اللہ کا ہوا. ایک گن سے نکال کے ہمیں اچھی جگہ پہ کنورٹ کر دیا, توحید کی سمجھ دے دی, اہل بیت کا تعارف اصل معنوں میں علی بھائی سے سیکھا ہے. یہ سچائی ہے. اچھا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, آپ کے دوست احباب فیملی, وہ آپ سے ایگری ہیں انجینئر صاحب کے معاملے میں یا ایگری نہیں ہے؟ وہ ڈس ایگری ہیں. ڈس ایگری ہیں؟ بہت زیادہ ڈس ایگری ہیں. کئی تو مجھے چھوڑ بھی گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ان کا کوئی گلا نہیں ہے. اب یہ جو 4 ماہ کا پروسیس گزرا, اس میں تو اور مشکل ٹائم تھا گھر والوں کی طرف سے بھی. خود استاد محترم اندر قیاد میں ہیں, 295C لگ چکی ہے, تو یہ کیا فیس کیا؟ سر اس 4 ماہ میں مزید بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی ہے, اسٹیٹس لگائے ہیں. پہلے اتنے نہیں تھے. بھرپور طریقے سے فیس بک پہ لگائے, ٹک ٹاک پہ شیئر کی, ان کی ویڈیو شیئر کی, اپنے واٹس ایپ پہ لگائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یار بھرپور طریقے سے بچہ انوالو ہو گیا ہو. یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ انجینئر صاحب قید ہو گئے ہیں, اب یہ اکیڈمی بند ہو گئی ہے اور یہ جناب شاید تو ہی سے پھر جائیں گے. غلط فہمی تھی, تو ہی سے تو نہیں پھر سکتے. وہ علی بھائی نے آج بات کی کہ یار وہ 10 12 سال 15 سال بھی اندر رہتے, لیکن جو انہوں نے عوام کے دلوں کے اندر توحید کی شمع جلا دی ہے, وہ کوئی ملا کوئی بندہ ختم نہیں کر سکتا. جو اہل بیت کی محبت انہوں نے ہر بندے کے سینے میں جلا دیا, مولا علی علیہ السلام کا عشق, یہ سیدھی بات, وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. آج اکیڈمی آئے, جی جی, کیا ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی انجینئر صاحب سے؟ ماحول کا کیا سوچ رہے تھے, اور وہ پوری بھی ہوئی؟ جی سر پوری ہوئی ہے. ویسے دیکھا جائے تو اتنا رش تھا, ہم بھی سیریوں میں بیٹھ کے سارا بیان سنا ہے. بیان تو گھر میں بھی سن سکتے تھے, لیکن ایک زیارت کا شرف حاصل دوبارہ کہ یار دوبارہ دیکھنا, 4 5 ماہ بعد آئے ہیں, وہ گھر میں بھی سن لیتے. لیکن جتنے اکیڈمی میں بندے ہیں, اس سے میں 2 3 بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جو 4 ماہ کی کیا تھی, استاد محترم کو کاٹ تو نہیں سکی, ان کو تھکا تو نہیں سکی؟ نہیں بالکل. وہ تو مزید سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہوتا ہے نا, امپرومنٹ ہوئی ہے ان کی, سافٹ ویئر اپڈیٹ میں امپرومنٹ ہو گئی, اپڈیٹ ہو گیا. ہاں جی اپڈیٹ ہو گیا, دوسرے والا. بے شک ایسے ہی ہوگا. چلے بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سجاد منیر ہے. جی جی. سجاد صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ جی میں فیصل آباد سے آیا ہوں. فیصل آباد سے آئے ہیں. جی تو میں نے یہ کہنا ہے کہ ماشاء اللہ جو ہے یہ جو کاروان اخوت و محبت ہے,
ये इंजीनियर साहब का ये काफ़िला कारवान अखवत व मोहब्बत है, और वो ख़ुद जो है माशाल्लाह खैर का सैल रवां है। तो हमें जो है इनके दस्ते बाजू बनना चाहिए इंशाल्लाह। खैर की जो क़ुव्वतें भी हैं, ये नहीं कि ये जो भी क़ुव्वतें जहाँ कहीं भी हैं खैर की क़ुव्वतें हैं, हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए और उनके दस्ते बाजू बनना चाहिए। बिल्कुल सही है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, मैं इससे first पहले time। कभी भी नहीं आए नहीं, थे? मैं- कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? मैं 3 साल से मैं इनका दर्स सुन रहा था। तो ये जो अभी पिछली एपिसोड हुई, वो जो नहीं, गुस्ताखे मैं- रसूल वाला मसला और सारी बातें उलमा इनके खिलाफ खड़े हुए, जी, तब क्या तासुरात थे? वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें देखी हैं। क्या सोचते थे कि ठीक कह रहे हैं उलमा, या आप इंजीनियर साहब के साथ खड़े थे? हम इंजीनियर साहब के साथ खड़े थे, और जो उलमा इनके साथ खड़े थे हम उनके साथ। इंजीनियर साहब तो थे अंदर, डर तो नहीं गए थे? नहीं, आपने पैगाम दिया लोगों को? बिल्कुल हमने जो है वो लोगों का हौसला बढ़ाया कि वो इंशाल्लाह जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो बाहर आएंगे। सही हो गया। और फिर से जो है ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, आगे फिर से बाहर, और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू हो गया। जी बिल्कुल। क्या तौक़ुआत थी उन पे? पूरा उतरे इंजीनियर साहब? बिल्कुल, इंजीनियर साहब जो है वो ताज़ा दम हो के आए हैं। बिल्कुल जो है वो माशाल्लाह, जी मैंने बताया ना कि ये खैर का सैल रवां है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता रहेगा, और हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, क़ुव्वत बाजू इनके बनने चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन? अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम सर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है मोहम्मद हसन अब्दुल्ला, मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ओ लिया अल्लाह के शहर से। जी ठीक हो गया। कहते हैं अब वो तसरात बदल गए हैं। अच्छा। जी, तो आज पहली दफ़ा मैं आया हूँ इंजीनियर साहब से मिलने। कितने लोग आए हो? मैं अकेला हूँ, स्टूडेंट हूँ। मुल्तान से तो मैंने देखा, काफ़ी सुबह भी मैं बाहर लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे बंदे हैं। जी, मैं मुल्तान से आया हूँ। अच्छा। और अच्छा, क्या आज पहला डे था, 4 माह का तवील वक्फा, उसके बाद पहला सेशन था, आपको भी पता होगा रश बहुत ज़्यादा था। कब निकले थे, कहाँ पे स्टे किया? मैं निकला था संडे को सुबह ट्रेन से, और 15 घंटे की ड्राइव थी, क्योंकि ट्रेन हमारी काफ़ी लेट थी। तो सारी रात सफ़र में, रात को 1 बजे होटल में रहे हैं, और सुबह नमाज़ पढ़ के सीधा यहीं आए हैं आपके नहीं, फिर पास। सैटरडे को निकले होंगे? सैटरडे को निकला था, सुबह। ठीक हो गया। और सारी रात हमने ट्रैवल किया, और सुबह 1-2 बजे यहाँ पहुँचे हैं, और फिर होटल में रिहाइश थी, अब यहाँ आए हैं सुबह नमाज के बाद फ़ौरन। सही हो गया। अच्छा, ये जो 4 माह का अरसा गुजरा, जो इंजीनियर साहब कैद में थे, हालात वाक़यात आपके सामने थे, कभी ज़मानत नहीं लग रही, कभी वो कुरान बोर्ड आ गया बीच में, नज़राती कौंसल आ गई, तो एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा था जैसे इंजीनियर तो गया। डर गए थे आप? नहीं, मुझे काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं मुझे टोंट करते थे, आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं, अगर वो इतना ठीक है उसको सजा की हुई है, तो दुख होता था। मैं खामोश रहा और दुआ करते थे इंशाल्लाह एक दिन आ जाएंगे। अकीदा छोड़ दिया था? नहीं, बिल्कुल भी अकीदा नहीं छोड़ा। मैं अपने लोगों को कम्युनिकेट करता था, यार एक दिन आ जाएंगे, आपको भी इंशाल्लाह हिदायत मिलेगी। आप यार ना भी आए? नहीं, मतलब मुझे क्यों अकीदा तो हमने नहीं ना छोड़ना, लेकिन टोंट करना कि तुम्हारे टीचर अगर इतने सही है तो जेल में ये वो दुख होता था। हाँ, वो तो सारी बात दुख होता। तो दुआ करते थे, उम्मीद नहीं थी कि मुझे आएंगे, और ये मुझे लग रहा था कि डाउन हो जाएंगे काफ़ी, लेकिन बहुत पैशन से जो आज इन्होंने बयान किया, बहुत खुशी हुई आज। खुशी हुई है? जी, बहुत खुशी हुई है। चले, इंशाल्लाह आपकी तस्वीर भी होगी। इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भजन? निशान भाई किधर से? फैसलाबाद से। फैसलाबाद भी आज माशाल्लाह बहुत सारा फैसलाबाद आया हुआ है। जी सर, हम मैंने आगे भी पूछा है कई लोगों से, वो फैसलाबाद से थे। हम 5 भाई आए हैं, दोस्त आए हैं, रात से निकले हुए हैं, आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यार फैसलाबाद भी एक तफील सफ़र है, कम से कम 5-6 घंटे का सफ़र तो है यहाँ हम से। रात 12 बजे के निकले हुए हैं, सुबह ऑलमोस्ट 7 बजे पहुँचे। धुंध बहुत ही ना, धुंध भी बहुत ही, सर्दी भी है, तो आप लोगों ने ये रिस्क लिया, इधर आए एकेडमी में, पहला सेशन था, क्या इतनी जल्दी थी, बाद में आ जाना था? सर देखे ना, शेर आज़ाद हुआ है, तो एक दिल में जज्बा था देखने का, तो सोचा कि जाके लाइव देखें, सामने बैठ के देखें। अल्लाह अकबर। कब से जानते हैं इनको? हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2019 से जानता हूँ, तो 2019 से इंजीनियर अली भाई को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दोस्त हैं ये, 2021-22 में इन्होंने अली भाई की वीडियोस देखनी स्टार्ट की। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी ग्रुप हैं जो अली भाई को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, उनकी जो है वीडियो भी देखते हैं। हाँ, उनके लेक्चर एज ए स्टूडेंट। जी, एज ए स्टूडेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैशन के साथ जो अली भाई वर्क कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से उनको। एकेडमी फर्स्ट पहला विजिट है? नहीं, मेरा तीसरा विजिट। तीसरा विजिट है? मेरा तीसरा विजिट। अच्छा, ये जो 4 माह गुजरे, जी, कैसे गुजरे? क्या सोचते थे उलमा का? वो जो एक फतवाबाजी चल रही थी, वो एक कुरान बोर्ड का फैसला, नज़राती कौंसल का फैसला, लगता था कि उस्ताद तो शायद बाहर ही नहीं आएगा,
تو کیا تھا ایک انجینئر کے اسٹوڈنٹ کے عام بندے کے تاثرات کیا ہیں؟ لوگوں کے تانے بھی مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے فیملی والے بھی آپ کے خلاف جا رہے ہوں، تو کیا تھا؟ عقیدہ چھوڑ دیا، بزرگ بابوں کو ماننا شروع کر دیا، کیا ہوا؟ نہیں، عقیدہ تو نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ ہم جس لائن پہ چل گئے ہیں نا یہ چھوڑا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن کچھ ٹائم کے لیے ایسا لگا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جیسے کہ نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ علی بھائی کو جو پرماننٹلی طور پہ نا چپ کروا دیا گیا، تو یہ بہت بڑی سازش ہے. لیکن اللہ پاک نے اس شر میں سے خیر نکالی کہ جو بہت نان وائلنٹ جماعت تھی نا، اس کی جو ہے نا علی بھائی کے الفاظوں میں، ہمارے الفاظوں میں منجی ٹھوک دی گئی ہے، وہ کمپلیٹلی طور پہ بیان کر دی گئی ہے. یہ اللہ پاک نے اس شر میں سے ہمارے لیے خیر نکالا ہے. الحمدللہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے. جی ریاست کا فیصلہ ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ ہمارے لیے یہ سب کچھ جو اللہ پاک نے اس شر میں سے خیر نکالا ہے. سب کچھ جینے کا حق ہے جی، ہر بندہ اپنی جو ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہاں وہ اپنی رائے دینے کا رائے دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے جی، وہ اپنی رائے دینے کا حقدار ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ جیسے کہ علی بھائی نے ابھی انٹرویو دیا ہے، ان کے الفاظوں سے اور ان کی یہ ویڈیو جو انہوں نے لیکچر سے لگ رہا ہے کہ آگے سے زیادہ وہ مضبوط ہو کے نکلے ہیں اور پوری پاور کے ساتھ نکلے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے آج والی یہ جو سیشن ہوا ہے نا، اس کے مطابق انشاءاللہ آنے والے وقت میں انجینئر ایک نئی طاقت کے حساب سے ابھریں گے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورے پیشن کے ساتھ انہوں نے اپنا جو آج کا جو سیشن لیا ہے، مزہ آ گیا، تھکاوٹ ختم ہو گئی. الحمدللہ. ویسے آگے سیشن جو ہے نا، اس میں آپ کو پتہ ہے ناشتہ بھی دیا جاتا ہے، چائے سموسہ بھی. اس وقت چونکہ اندازہ نہیں تھا اور معاملات ایسے تھے، ہم نے انجینئر صاحب کو دیکھ لیا، ہماری بھوک ایسے ہی مر گئی. مین مقصد تھا انجینئر صاحب کو دیکھنا، وہ الحمدللہ ہم نے دیکھ لیا، ہماری بھوک ایسے ہی ختم ہو گئی ہے. ہمارا مقصد یہاں پہ کھانا نہیں ہے، یہاں پہ آ کے کوئی بریانی نہیں ہے چاول کا. جی یہی فرق ہے جی، بالکل. ہم الحمدللہ اپنے گھر سے یہ سب تیاری کر کے نکلتے ہیں. ہم اس چاہت کے لیے نہیں آتے کہ وہاں سے جا کے بریانی ملے گی، ہم اس لیے آتے کہ ہمیں اپنے استاد کا دیدار کرنے کو ملے گا، وہ بھی 4 مہینے کے بعد. الحمدللہ ہم وہ جو کہتے ہیں دل کو تسلی سکون ملا، وہ الحمدللہ ہم کو ہو گیا. یہ چائے ناشتہ اس کی ہمیں واللہ کوئی ضرورت. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. آج انشاءاللہ ابھی آپ کی پکچر بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بھیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام حافظ طلحہ. حافظ طلحہ جی. کدھر سے؟ باراگاؤں سے ہوں میں. باراگاؤں یہ پنڈی والی سائڈ پہ؟ جی جی، مری والی سائڈ. مری والی سائڈ پہ ہے. کیسا رہا سفر؟ سفر تو اچھا تھا، اور استاد کو دیکھنے کا. اکیلا آیا؟ جی اکیلا آیا ہوں میں. استاد کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا جی. استاد کو تو چلو بعد کی بات کرتے ہیں نا، پہلے تو یہ بتاؤ یہ جو پہلا سفر ہے یہاں پہ؟ جی پہلا سفر ہے. کب سے جانتے ہو استاد کو؟ میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا. 1.5 سال سے سن رہے ہو جی. اچھا، یہ جو 4 ماہ کا یہ پیریڈ گزرا، بیچ میں جو وقفہ کو آیا دعوت کے حوالے سے، آپ کو پتہ الزامات لگے اور کیا کیا کچھ ہوا، تو کیا ری ایکشن تھا؟ ریئیکشن یہ تھا کہ اللہ کے اوپر پورا یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ حق کا ساتھ دے گا، اور استاد کے اوپر بھی یقین تھا کہ جیسے انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کی، ہمارے لیے کی. ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوتا ہے بخاری کیا ہے، بالکل نہیں پتہ تھا. تو استاد کی جب استاد نے بتایا کہ یہ ہے، پھر ہم نے خود پڑھا، پھر ہمیں لگا. تو بس یہ ریئیکشن تھا کہ اللہ کے اوپر پورا یقین تھا، انشاءاللہ کے اوپر جو یقین تھا تو اس کے بعد ہوا کہ استاد. علماء جو فتوے دیتے رہے، نظراتی کونسل ہو گیا، قرآن بورڈ ہو گیا، وہ کہتے رہے گستاخ ہے اور یہ وہ، کیا لگتا تھا آپ کو کہ انجینئر صاحب نے ایسا کچھ کیا ہے؟ نہیں، یہ کوئی سازش ہے؟ بالکل سازش ہی تھی، کیونکہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، باب سے ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بالکل انویلڈ بات تھی. تو بالکل یقین نہیں تھا. آئے استاد محترم 4 ماہ بعد، آج پہلا سیشن تھا، آپ پہلے سیشن میں آئے، آپ نے دیکھا، کیا نظر آیا؟ جذبہ آیا، جنون آیا. جیسے ایک سرپرست اپنے لیڈ کرتا ہے ٹیم کو، ویسے آیا. اور کوئی بھی نظر نہیں آیا کہ جیسے ایک بولتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ لگے ہیں آج کل، بالکل نظر آیا. ایسا ہے کہ جنہوں نے کروانا تھا ان کا ہو گیا. جی. چلے بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جی اور السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ علی ظریف نام ہے میرا. علی ظریف جی. علی بھائی کہاں سے؟ میں واقعینڈ سے آیا ہوں. واقعینڈ سے؟ ویلکم جی آپ کو جیلم اکیڈمی میں. بہت بہت شکریہ. پہلا سیشن تھا، لوگ تو بڑے بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے اور ابھی بھی قطاروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں. جی میں وہی دیکھ رہا تھا. ابھی اندازہ تھا اتنا رش ہوگا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے کہا تو آؤں گا، لائیو سیشن دیکھوں گا، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے نا نیچے بیٹھنا پڑ گیا. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے لیکچر سارا سنا ہے اور ابھی انشاءاللہ فوٹو سیشن کی طرف جائیں گے. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ 3-4 سال ہو گئے مجھے.
एकेडमी पहली दफ़ा आए हैं? अकेडमी पहली दफ़ा आया हूँ, इससे पहले नहीं आए? इससे पहले कभी ये जो 4 माह का अरसा गुजरा, जी जी, देखा आपने क्या क्या कह लो आफतें टूटी, किस तरह करके, जी जी। क्या आपकी हिम्मत टूट गई थी? आपका अकीदा छोड़ गए थे, डर गए थे लोगों से, क्या था? आप अपने तासरात बताएं। नहीं, असल में इसमें अकीदा छोड़ना और इसके अलावा डरना इस तरह तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यह है कि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन था और मुझे ये बिल्कुल 100% इस चीज़ पे मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं मुझे 100% श्योर था मैं कि अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और हमारे उस्ताद मोहतरम वापस आएंगे इंशाल्लाह। जी जी, तो बहुत खुशी हुई हमारे अपने उस्ताद मोहतरम को वापस आए इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह जो है ना फ़िरक़ों की दुकानें बिल्कुल बंद हो जाएंगी और इंशाल्लाह इसके बाद गलबा इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत का, जी कुरान और सुन्नत का हमेशा रहेगा। बेशक बेशक, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इस दफ़ा वो स्पीच किया है। देखिए अल्फाज जैसे लग रहा था इंजीनियर की रूह आ गई है, तब्दीली आ गई है। शहबाज शरीफ साहब में जो है ना, हाँ, इंजीनियर साहब की रूह आ गई थी ना। चले, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आज जी, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम फ़हद इकबाल। फ़हद भाई किधर से? मैं दौलत नगर गुजरात से। गुजरात से, वेलकम जी, जी आया हूँ जी। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा जी, ये बताएं, सर्दी भी काफ़ी और मौसम भी इतना ठंडा, झाड़ पड़ा हुआ है, बहुत कुर्बानी दे के आए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगले सेशन पे ही आ जाना था, इतनी जल्दी क्या थी? वो एक जो 4 माह बाद आज स्टार्ट हुआ है ना, एक लेक्चर था आज, रुका नहीं गया, बस दिल किया कि आज ही जाना है। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? मैं ये तो भला हो मुफ्ती तारक मसूद साहब का, जिन्होंने इनके खिलाफ नेगेटिव वीडियो बनाई और मुझे इनका तारुफ वो हुआ। जो पहले वो जब जेल में आए थे और वो प्रोपेगेंडा हुआ था सारा, तो उन दिनों मुझे तारुफ हुआ था, तो तब से ही मैं इंजीनियर साहब को सुन रहा हूँ। अकेडमी आगे भी आए हैं? नहीं, पहली दफ़ा आए हैं। अभी ये जो 4 माह गुजरे, ये कैसे गुजरे, ये भी तो बताएं। ये जो मेरे दोस्त और कुछ रिश्तेदार मुझे कहते थे कि अब ये जेल में चला गया, अब ये इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, ये सब, लेकिन अल्लाह पे यकीन था कि ये बाहर आएंगे और एक वसवसा आता था कि अगर ये ना आए तो कोई इतना नहीं है, उन्होंने दीन के लिए जितना काम कर गए हैं, द डैमेज हैज़ बीन डन, डैमेज उन्होंने डन कर दिया हुआ है। अब अगर वो मिसाल के तौर पर अगर वो जेल से ना भी आते तो हम लोगों को उनकी वीडियोस से उनके दीन पेश कर सकते थे कि सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान में ये है, आपके लोग ये कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, हम उनकी गलतियाँ हाईलाइट कर सकते हैं उनके तरीके से। अच्छा जी जी, सर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अपनी एक खुशी का इजहार करना जी 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 कि मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ एक आज के दौर में, कि मुझे इस दौर में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे उस्ताद मिले हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये मेरा एक अच्छा, ये जब ये सारी एपिसोड चल रही थी, गुस्ताखाना फतवे लग रहे थे, क्या लगता था? ये जिस तरह उलमा बोल रहे थे, लगता था इंजीनियर साहब ने कोई गुस्ताखी की हुई है? एज ए स्टूडेंट क्या सोचते थे? सर नहीं लगता था, उन्होंने तो वो नकले कुफर जो किया उस पर 295C लगती नहीं थी। और बहुत से उलमा के जब जो पहले उनके खिलाफ वीडियोस बनाते थे, जब उनके बयान आए कि ये इन पे 295C नहीं लगती, तो और दिल खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ। 4 माह बाद आ गए उस्ताद मोहतरम, कोई तब्दीली देखी, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ देखा? उन्होंने वीडियो अपनी में जो बताया तो उससे यही लगता है कि जो इनके मुखालफिन का ही सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इनके रब्बी हो गया सच को पसंद करता है। बेशक जी, बेशक। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। कसीम अहमद। सॉरी, कसीम अहमद। कसीम, इसका क्या मतलब है? देखा नहीं। कसीम भाई कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में। फर्स्ट टाइम आए अकेडमी में? सेकंड टाइम आया। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए? 3 साल तो गुजरे। 3 साल हो गए। अच्छा, ये जो 4 माह गुजरे, इन 4 माह में इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट थे वो क्या करते रहे हैं, आप क्या करते रहे हैं? सर अगर मेरे ज़ाती पूछते हैं तो अगर मैं अपनी तस्वीर दिखा देता हूँ अपने पहले की, जब मैं पहले अली भाई के पास आया था, ना टोपी थी ना इस तरह की दाढ़ी थी माशाल्लाह। तो जब ये अली भाई के साथ ये वाला मामला हुआ तो मैंने खुद अपना फ़र्ज़ जाना कि यार वो तो चलें, आना या नहीं आना वो नसीब की बात है, अल्लाह ताला ने जो मंजूर जाना हुआ, तो हम अपने तरीके से जो है अपने तरीके से जितना हम कर सकते हैं हम उसको कंट्रीब्यूट करें। तो उसके लिए फिर ज़्यादा दीन की तरफ और स्टडी करना शुरू किया, फिर अल्लाह ताला ने हिदायत दी, फिर मस्जिदों के साथ जुड़े, फिर सारी बात है मदरसों के साथ जुड़े, पढ़ना शुरू किया। खुद पहले तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना शुरू हुई, कम से कम यार खुद अपने आप को सेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो फिर मतलब उसके वाले से बाद अपने आप की इस्लाह की, उसके बाद आप कोशिश कर रहे अपने घर वालों की, सबसे पहले अपने वालदा के ऊपर काम किया, वो शुक्र है उनको सुन्नत के मुताबिक नमाज शुरू कराई है, अब अपने वालिद साहब की तरफ करते हैं। तो
اچھا یہ جو 4 ماہ کا جو دورانیہ تھا اس میں جو مخالفین تو خوش تھے، بغلے بجا رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی انجینئر صاحب نے کچھ ایسا کام کر دیا ہے؟ نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے تو ہم نے تو دلائل کو دیکھنا، ہم نے تو دیکھنا کہ یار ہمارے سامنے کا چیز ہے. باقی غیب میں جو بھی ان کے معاملات علی بھائی کیا، جس کے جو بھی وہ نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو بظاہر جو اگر جس طرح میں نے دیکھا، جس طرح میرا شعور یا جس طرح میرے ضمیر نے جواب دی، مجھے تو اس طرح کچھ اس میں نہیں نظر آیا کہ یار انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے یا اس طرح کا کرنا ہے. باقی دیکھیں اگر تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، ہم نے اپنا قبلہ ٹھیک رکھنا ہے. باقی وہ ہمارے استاد محترم ہیں، ان سے ہم نے سیکھا ہے. وہ دیکھیں نا انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے. وہ جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر گئے ہیں، اب آگے ہم نے کرنا ہے. اب وہ ہماری طرف سے آج اللہ کا شکر ہمارے سامنے ہے، ہمیں خوشی ہے اس چیز کی. لیکن اگر نہ بھی ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو ہمارے ذاتی کچھ فرق، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ان کے جانے کے بعد میں ذاتی طور پہ زیادہ دین کے ساتھ جڑا ہوں کہ یار الحمدللہ بالکل یار ایسے چاہیے کہ چلو ایک جو چلا گیا اب اس دین کے کام رکنا نہیں چاہیے. میں بلکہ جو ہم نے محلے کی مسجد ہے، محلے کی وہاں پہ بھی جا کے جو 4-5 جو وہاں پہ لڑکے دیکھے، بزرگ کو تو ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ بڑا ہاتھ ڈالتے ہیں. تو ہم پھر ظاہری بات ہے ان کو بھی دعوت تبلیغ کام شروع کیا، یعنی تیز کیا اپنے آپ کو کہ یار چلو ایک بندہ ہمارا اندر گیا تو کوئی نہیں، ایک انجینئر اندر ہے تو ان کے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ، ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہر گھر میں، ہر مسجد میں انجینئر. انجینئر صاحب آج آپ نے دیکھ لیا ان کا پیشن، ان کا وہ چاہ ختم تو نہیں ہوا؟ ڈر تو نہیں گئے؟ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، ودیا پہ ایسی کام. چلے بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبداللہ حسین ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق ہے میرا، KPK. ڈیرہ اسماعیل خان سے ویلکم جی. آپ کو پختون ہے؟ نہیں، وہاں ہوں پختون. اچھا ہوں پختون، ٹھیک ہو. رہتا ہوں سرائکی میں ہوں. ٹھیک ہو گیا. ویلکم جی. آپ کو کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ انجینئر صاحب کو میں پہلی بار جب ویڈیو ان کی دیکھی تھی 2015 میں دیکھی تھی، اور باقاعدہ جب ان کو دیکھنا سٹارٹ کیا تو 2016 تھا، تب سے دیکھ رہا ہوں. آگے اکیڈمی آئے ہیں؟ میں پہلی بار آیا ہوں. پہلی بار آئے ہیں؟ اچھا وہ دن رکھا آپ نے جس دن آپ کو پتا تھا کہ آج رش بھی ہوگا اور اتنا لمبا سفر کیا اور سر آج کا وزٹ تو بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ آج تو 295 کے بعد پہلا سیشن تھا. اچھا یہ جو 4 ماہ گزرے یہ کیسے گزرے؟ کیا آپ نے بھی فیس کیا؟ استاد اندر ہے، حالات و واقعات خراب ہیں، ٹھیک ہے، فتوے آ رہے ہیں، کیا لگتا تھا کہ واقعی سب ہمارا استاد ہے یا کیا ہے؟ برابر بھی شک نہیں تھا، اور سارے اللاجیکل باتیں تھیں جن کی بیس کے اوپر سارا کیس تھا. اور ہمیں تو کوئی یعنی کہ یہ بھی نہیں تھا کہ یار کوئی آیا کوئی انہوں نے ہیٹ اسپیچ دیا یا پھر کچھ اس طرح کی بات، کچھ بھی ایسا ہمیں نہیں لگا. ہم نے کہا کہ ایک حق بات تھی جو بیان کرنی تھی، بیان ہو گئی. اچھا استاد محترم آج آئے ہیں 4 ماہ بعد آج اپنی سیٹ پہ بیٹھے اور لوگوں سے پہلی دفعہ خطاب کیا. کیا نظر آیا؟ کچھ چینجنگ نظر آئی استاد محترم؟ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہو؟ ذرا برابر بھی چینج نہیں. اچھا کوئی چکر بلکہ نئی باتیں تھی. تو جو انجینئر صاحب کو ملائن کرتے رہے وہ آج ان کا اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے. ہاں اپڈیٹ ہو چکا ہے، بہت اچھا اپڈیٹ ہو گیا. الحمدللہ. چلے آج انشاءاللہ پکچر بھی ہوگی. بہت شکریہ. آؤ. السلام علیکم. کیا نام ہے بھیا؟ محمد فراز بھائی. کہاں سے؟ دولت نگر سے. وہ کدھر ہے؟ وہ گجرات کے پاس ہے. گجرات کے پاس ہے. ویلکم جی. اب ایک اور بھائی بھی آیا تھا. اکٹھے ہو؟ فرسٹ ٹائم آئے کیا بھائی؟ 2 بار. دوسری بار ابھی. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ 2-3 سال ہو گئے. 2-3 سال ہو گئے ہیں. یہ جو 4 مہینے پچھلے گزرے، اس کا مجھے بتائیں یہ 4 ماہ میں کیا کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے کیا سوچا؟ گستاخی کے فتوے آ گئے تو استاد کے اوپر. وہ کیسے گستاخی کرتے ہیں؟ ان کا نعرہ یہی ہے میرے نبی صاحب رائی کو نہیں تیرے بابے تو شاہی کو نہیں. گستاخی کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے استاد ہیں. مجھے الحمدللہ ہمیں تو پتہ ہے، ہم یقین تھا یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ. اچھا جب آپ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی دوست، وہ کیسے آپ سے یہ جو 4 ماہ گزرے ان کا بیہیو کیسا تھا؟ کیسے ان کو ٹیکل کیا؟ بس ٹھیک ہے، بس دوستوں نے کافی تنگ کیا، باقی تو کوئی نہیں. میں نے اللہ پاک خیر کرے، انشاءاللہ ہمارا بھی ٹائم آئے گا. آج آیا ہے انشاءاللہ. آج آ گیا ٹائم. جی انشاءاللہ. کیسے لگے استاد محترم آج آئے اپنی کرسی پہ بیٹھے؟ وہی انداز ان کا پرانے والا. وہ اگلے دن میرا دوست تھا، میں نے باہر جانا نا، انہوں نے بولا ہے وہ آپ کا انجینئر والا ویزا کر دوں. میں کہا انجینئر کا نام نہ لو، وہ ڈر جائیں گے جی، بابے تھوڑے ڈر جان دے جی. وہ مسکرا کر چلا گیا. انشاءاللہ بہت مجھے مزہ آیا اور نیکسٹ ٹائم بھی انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ہمارے استاد ہیں اور ماشاءاللہ
आगे से पिछली दफ़ा से उनका अभी पैशन जो ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। आए जी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद जैन अली। मोहम्मद जैन भाई कहाँ से? मैं डडियाल आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से, वेलकम जी। कैसा रहा सफ़र, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बंदे हैं? 2 बंदे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अनस मुमताज़। मोहम्मद अनस मुमताज़। अनस भाई कहाँ, आप भी डडियाल से इकट्ठे हैं? जी हाँ। किसने प्लान बनाया? प्लान इन्होंने ही बनाया ज़्यादा। आपने प्लान बनाया? मुझे ये बताएं, जानते कब से इंजीनियर साहब को? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो जी गए। और एकेडमी आगे भी आए हैं? एक बार आया हूँ। एक बार आए। मुझे ये बताएं, ये 4 माह जो गुजरे, इल्ज़ाम लग गया, फतवे आ गए, इंजीनियर साहब अंदर, जी जी, कुरान बोर्ड भी सामने है, नजराती कौंसिल भी सामने है, क्या लगता था, क्या गुजर रही थी आपके ऊपर? हमें तो पहले ही पता था कि गुस्ताखी नहीं है, क्योंकि वो अल्फाज ही ऐसे नहीं है। उसके बाद ये जितने भी कबर चाट और बाबा चाट ग्रुप है और जो भी है, जिनकी अपनी जमाती मिट्टी में मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, ये इस मुल्क में हर बंदे को जीने का हक है। अपने अपने नज़रियात अपने पास रखें, ठीक है, हर बंदे को जीने का हक है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यही बातें कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, चलना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया? अली रज़ा। अली रज़ा। अली रज़ा भाई, ये भी आपके साथ है? अस्सलाम वालेकुम भैया। क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलेमान। मोहम्मद सलेमान भाई कहाँ से? फैसलाबाद। आप भी? दोनों फैसलाबाद से? फैसलाबाद भी आज माशाल्लाह बड़ी तादाद में आया, हक अदा किया है उन्होंने। आज धुंध बहुत ही, लेकिन बहुत मुश्किल पहुंचा, लेकिन जज़ाकल्लाह जी, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, आप इंजीनियर साहब को कब से जानते हैं? तकरीबन 6-7 साल से सुन रहा हूँ उनको। आगे आए अकेडमी में? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है आपका? मैं भी फर्स्ट टाइम में आया हूँ। और तारुफ कब से हुआ? 2017 में। 2017 में। ये जो 4 माह गुजरे, फतवे आ गए, बिल्कुल, कैद, पंजाब बोर्ड, कभी नजर आती कौंसल, क्या बीत रहा था एक इंजीनियर साहब का जो स्टूडेंट है, जो उनको एज ए टीचर अपना उस्ताद मानता है, उसके ऊपर क्या गुजरती थी? बहुत बढ़िया। क्या लगता था ये गुस्ताखी जो उनके ऊपर लगा इल्जाम, क्या लगता था? कभी वसवसा भी आया? बहुत गलत काम किया उन्होंने। नहीं, कभी ये वसवसा भी आया कि इंजीनियर साहब ने आया वाकई अल्लाह ना करे गुस्ताखी की है? ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता जिंदगी में। सही है। आपकी क्या तासुरात है? जी, जिस बंदे का नारा ये है कि मेरे नबी से है ही कोई नहीं, वो बंदा गुस्ताखी नहीं। और वैसे भी लॉजिकली अगर देखा जाए ना, वो पढ़ा लिखा बंदा देखे तो उन्होंने हवाला दिया है, बस उन्होंने खुद से नहीं कहा। अगर खुद कहते इनकी तालीमात हमें इस तरह की मिली हैं, अगर ये खुद कहते ना, तो हमारा भी यही दावा होता कि 295C लगनी चाहिए थी। लेकिन 295C हमें नबी से ऊपर तो नहीं है ना, हमें तालीमात ही यही दी हैं, ज़बरदस्त इन्होंने तालीमात दी हैं हमें, और हमें तालीमात इस्लाम की मिली ही नहीं से। अगर कोई भी करे तो वो सूली पर टांगना चाहिए। बिल्कुल सही, ये नहीं कर सकते ऐसे। ये मेरा दिल भी कहता था, और एक बंदा जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा, वो समझता है यार इसने हवाला दिया और इसने खुद से नहीं किया। अच्छा, जो उलमा हमारे गेस खड़े रहे और रोना रोते रहे और गुस्ताखी का प्रचार करते रहे, आज वो किधर खड़े हैं? उनकी जो पब्लिक है ना, वो उनको सिर्फ सेटिस्फाई करते हैं। अंदर से वो भी मानते हैं कि ये बंदा ठीक है, बंदा गलत नहीं है। अंदर से बंदे का ज़मीर बताता है कि मैं काम ये सही कर रहा हूँ या गलत। उनको पता है कि ये बंदा सही है, बस वो अब अपनी आवाम के सामने कैसे कहें जो हमने तालीमात आपको दी हैं वो गलत है। कह नहीं ना सकते, खुद को कोई बंदा चोर तो नहीं कहता ना, अगले पे बंदा ये कहता है मैंने नहीं चोरी किया, अपने बहाने बना। अब वो बस अपनी आवाम को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये देखो ये पकड़ा गया, ये गलत था, नाउज़ुबिल्लाह, या इस तरह। ये सब बातें थी। आए जी 4 माह बाद आपके उस्ताद मोहतरम आए, बाहर आए अकेडमी में, आज आपने देखा उनको ललकारते हुए दोबारा, डर गया है उस्ताद? ना, अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर, क्या है सर? जिसके अंदर तौहीद है वो नहीं डरता। अल्लाह अकबर। वो जो बंदा तौहीद के साथ है ना, वो नहीं डरता। क्या कर लेंगे, ज़्यादा मार देंगे ना बस, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? इसके बाद हमेशा की जन्नत है इंशाअल्लाह। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बिला हिसाब का बेशक, मोहम्मद यही सोचता है, बेशक। चले जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। किधर से आए हैं? जी, चकवाल से। चकवाल से? जी। खैर खैरियत है? जी, खैरियत है। आज इंजीनियर साहब को कब से जानते हैं आप? जी, काफ़ी अरसे से। काफ़ी अरसे से। ये जो 4 माह गुजरे, इंजीनियर साहब के ऊपर फतवा आया कि गुस्ताख है, क्या सोच रहे थे आप? नहीं, ये तो कोई गुस्ताखी नहीं। ये जो बड़े बड़े उलमा लगे रहे इंजीनियर साहब के खिलाफ आके नारे मारते थे, पर्चे कटवाएंगे, FIR देंगे, बाहर नहीं आने देंगे, ये मुखालफत दर मुखालफत है।
कोई ख़ास बात नहीं थी ऐसे। जी हाँ, ये तो सिर्फ बस ऐसे मुखालफत थी, बस ऐसे मैं फ़लाँ फ़िरके का हूँ, मैं फ़लाँ मुखालफत भी बंदा जो है ना, वो नस्ली बंदा मुखालफत भी कुछ सूलों पे करता है। ये तो यानी इस तरह का गंदा वो लगाया इल्ज़ाम इन्होंने, ठीक है, एक बंदा जो नबी का नारा लगाता, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम, बोतान भी है और इल्ज़ाम भी है और सब कुछ है। ये इसकी माफ़ी नहीं होगी, क्योंकि किसी पे वैसे इल्ज़ाम, मतलब आम इल्ज़ाम लगाना तो बहुत बड़ा जुर्म है ना, और ये इल्ज़ाम तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आए उस्ताद मोहतरम, आए आज इंजीनियर साहब आए अपनी सीट पे दोबारा बैठे, क्या नज़र आया? वो जज्बा, वो वलवला के डर गए हैं कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्या नज़र आया? हम तो सीढ़ी में बैठे थे, हाँ, हमने लाइव देखा तो नहीं है, आवाज़ तो सुनी, आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है, ठीक। चलो इंशाल्लाह भी मुलाकात होगी। वालेकुम सलाम। आप वाला साहब आपके क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शाहजेब आबिद है। आप लेके आए हैं? हम इकट्ठे ही आए हैं साथ। हम काफ़ी अर्से से प्लान बना रहे थे, लेकिन इस दौरान फिर ये केस हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो बस अभी हमने कहा कि कर लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, कब से सुन रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया, मतलब कि हम तो शुरू से ही मतलब इसी मकबा फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब इसी लाइन पे चल रहे हैं। वाले साहब को दावत आपने दी है, इन्होंने आपको गाइड किया? मतलब हम तो शुरू से घर में, शुरू से घर में, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है जी। इस तरह के पाकिस्तान में बुजुर्ग कम ही है जिनके घर में मुखालिफ तो ईद है। और मैंने काफ़ी तहकीक के बाद इधर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी बरेलवी, देवबंदी, फिर अहले हदीस, अभी हूँ तो अहले हदीस ही, लेकिन मतलब सही है, सही है, मैं कोई मसला नहीं। तो इनका जो मौक़िफ़ है वो हमने फिर सर्च किया है, किताबों में देखा है, हदीस नंबर जब बताते हैं तो फिर फ़ौरन हम हदीस देखते हैं, तो बस हम कह लो कि भाई ठीक है, ये ठीक कहते हैं जो कुछ। और वो जो हमारे अहले हदीस कुछ हैं, सारे नहीं हैं, कुछ हैं जो उधर बनो उमैया के साथ। अब अमूनास तो ज़बरदस्त है जी, 24 कैरेट सोना है। कुछ उलमा हैं वो जो चाकरी कर रहे हैं बनो उमैया की, तो करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम जो है वो सुनती है जी, जिन्होंने बचपन से सुना है कुरान और सुन्नत, वो मानते हैं। हम तो अगर ये कुरान और सुन्नत से हट के बात करेंगे तो हम इनके जी दीवार की नोक में मारेंगे बात इनकी, सीधी सी बात है, कोई भी करेगा। हम तो मतलब इंसाफ पे चलते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करेगा सारा आँखों पे, बेशक बेशक, और जो उनसे हट के करेगा वो नहीं है। हमारे पहले कहते थे कि जमहूरियत जो है ना वो कुफरी निज़ाम है, अभी वही कहते हैं कि ये ठीक है। तो उनके साथ बड़ी फिर मैंने बहस मुबैसा किया कि ये पहले कब हराम थी और अब क्या क्यों हलाल हो गई है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ऐसे है ये खास करके जमात दावा वाला जो, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो हमने सारा देख के खाए हैं, 34 साल तकरीबन बरेलवी रहा हूँ, फिर 2 साल देवबंदी रहा हूँ, फिर उसके बाद जमात दावा की दावत भी, उनकी दावत अच्छी थी, उनकी दावत पे फिर मैं कुछ किताबें पढ़ी, फिर उसने कहा कि हदीस की किताब ले आओ, फिर मैंने वो जब घर में पढ़ी तो मुझे वो नज़र आया कि वो अहले हदीस स्टेज पे नहीं बयान करते थे जो हम पढ़ते थे। जो हदीसें मैंने पढ़ी है ना वो स्टेज पे नहीं बयान हुई, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते थे, कुछ आधी करते थे पूरी नहीं करते थे, इस तरह। चले जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आज इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी जी जैसे आपसे। जी चले अभी मिला है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर भाई, कहाँ से हैं? राजनपुर से। जी सर। खैर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सफ़र ठीक रहा? कितने दोस्त आए हैं? एक दोस्त के साथ आए। एक दोस्त के साथ आए हैं। अच्छा ये बताएं, 4 माह बाद एक तवील वक्फा, उसके बाद ये बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। हाँ, आपको अंदाज़ा तो था कि ये रश होगा, फिर भी आप आए इतनी दूर से, सर्दी भी थी, मौसम भी ऐसा है बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक ख्वाहिश थी मिलने की। कितने बजे पहुँचे थे? मैं 3 बजे पहुँचा। इनका तारुफ कब हुआ था? इनका तारुफ हुआ था मेरा 2023 में। 23 में, यानी ये जो इनके ऊपर वो गुस्ताखी वाला, हाँ उससे पहले, हाँ उससे पहले ठीक हो गया। मेरे दोस्त के साथ, ये मेरा दोस्त वीडियो देख रहा था तो मैं उस टाइम यानी कि प्रॉपर एक सुनी टुन्नी वाला सीन था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दावत में उसने मुझे पेश की कि यहाँ इस बंदे को सुने, ये बंदा बड़ा अच्छा है। फर्स्ट टाइम तो मैंने सुना था, लेकिन मैंने कहा यार ये किस को सुन रहे हो, किस गाँव में लगे हुए हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह ने एक दावत पहुंचानी थी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो इंजीनियर साहब के थ्रू पहुंची, बहुत खुश हुआ। बीच में वो वक्फा आ गया कि गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग गया, इंजीनियर साहब अंदर हो गए, दुख हुआ, उलमा के फतवे आ गए लोगों के ऊपर, ठीक है, अल्लाह इनको हिदायत दे। नहीं फिर उस वक्त उस दौरान आपने क्या सोचा, क्या किया?
दौरान मैंने बस यही सोचा कि बस इंशाल्लाह दीन तो अल्लाह की तरफ से जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन हमने कोशिश करना है कि फितने फसाद से बचें और जो हम दावत पहुंच चुकी है इंजीनियर साहब की तरफ से उनकी वीडियो को देखें ताकि और फसाद से बचें, और बर वक्त हम जो रिपोर्ट आती थी ना उस इंस्ट्रक्शन को हम जब ये बड़े बड़े उलमा लगे हुए थे गुस्ताखी का फतवे लगाने अवामुन्नास को गुमराह करने, आपके दिमाग में कोई वसवसा तो नहीं आया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब के थ्रू हमें दिया। 4 माह बाद आज इंजीनियर साहब आए हैं, आज आपने देख लिया, फर्स्ट टाइम मैंने आज यहाँ पे आके देखा है, बहुत खुशी हुई। पहला सेशन हो चुका है, हाँ, लोग यहाँ पर सुबह 3-4 बजे के इकट्ठे हुए हैं और इतनी आवाम थी, पहला सेशन हो चुका से आया था लेकिन उस टाइम मुझे जगह नहीं मिल सकी थी, फिर हमें वेट करना पड़ा। कितना इंतजार किया आपने? तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें मैं 7 से 8 घंटे वेट किया। 7 से 8 घंटे वेट किया और बारिश के अंदर वेट किया, लेकिन पीछे से कॉलें आती रही कि वापस आए, काम पड़ा है। मैंने कहा नहीं अब तो मिल के ही जाएंगे इंशाल्लाह, 2 साल के बाद आए इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी देख तो लिया ना? देख लिया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी, वाकई आप लोगों ने बड़ा वेट किया, इसलिए आपके उस्ताद मोहतरम ने भी कहा था कि कुछ भी हो जाए जितना मर्जी टाइम लगे मैं सबको मिलूंगा। एक ही नारा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आए जी सर सामने का अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकमल जी। मोहम्मद अकमल साहब किधर से? जी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। माशाल्लाह, वेलकम जी आपको। से रहता हूँ जी आए जी जेएलएम अकेडमी में। अच्छा सर कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? मैं सर मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के जो 40 सवाल थे पहली दफ़ा मैंने उस समय देखा था, मैंने फिर उस तजस्सुस में रहा, फिर लेक्चर सुनने शुरू किए। तो 3 साल पहले मैं एक चक्कर लगा के गया था, ठीक है, तो फिर इन्होंने कहा था दोबारा नहीं आना, तो लेकिन अब तो फिर आना पड़ेगा। मैंने कहा चलो एक चक्कर लगाते हैं। ठीक हो गया, यानी अकेडमी में पहले भी आपने चक्कर लगाया? मैं 3 साल। अच्छा सर अकमल साहब ये मुझे बताएं, ये जो बीच में एक बैड पैच आया, जी जी 4 माह तकरीबन अकेडमी बंद रही, जी जी गुस्ताखी के फतवे लग गए, इंजीनियर साहब को अंदर कर दिया, 295C जितनी बड़ी दफ़ा लग चुकी, नज़राती कौंसिल का फैसला आ रहा है, कुरान बोर्ड का आ रहा है, एक तो ये हालात वाक़या तो बता रहे थे शायद इंजीनियर साहब बाहर आएंगे ही नहीं और ये वो, तब क्या आपकी सोच थी, क्या फिक्र थी, क्या लगता था सर क्या होगा? ये सारे बोने लगते थे जितने उलमा हैं, कोई वसवसा नहीं था। मैं शुरू से पहले डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह को सुनता था, फिर मौलाना तारिक जमील साहब को साथ सुना, फिर प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब के सेशन अटेंड किए, फिर इनसे तारफ़ हो गया मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से, तो अब यहाँ पे खड़े हैं इंशाल्लाह। और माशाल्लाह इंजीनियर साहब को देख लिया आज? जी देख लिया जी। क्या नज़र आया, कोई अपडेट हुआ, सॉफ्टवेयर वगैरह कोई नज़र आया? साउंड तो उनका हुआ है अपडेट, जिन्होंने प्रॉब्लम की है वो तो माशाल्लाह बिल्कुल पहले से नौजवान हो के आए हैं। हाँ जी, और जज्बा भी ज़्यादा है उनका जी पहले से ज़्यादा। और कब से वेट कर रहे हैं आप, कितने बजे आए थे? मैं सर 5 बजे चला था इस्लामाबाद से, ठीक है, तो 8 बजे पहुँचा इधर। तो उस वक्त क्या सिचुएशन? पहला सेशन जा चुका था, तो फिर बाहर खड़े थे, अभी 12:30 दोबारा एंट्री हुई है। 12:30 चलो जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अवामुन्नास आपको पता है इतना अवामुन्नास का समुंदर ही था, जगह हमारे पास है नहीं, हम इससे ज़्यादा बड़ी जगह ले भी नहीं सकते, ज़रूरत नहीं है ना। कितने बंदों को बंदा फिजिकली मिल सकता है, बात तो ये है ना, इंजीनियर साहब ने तो मिलना होता है सबसे, तो इसलिए आपने सब्र किया, अल्लाह ताला आपको इस पे अजर अज़ीम अता फरमाए और इंजीनियर साहब से मुलाकात आपकी हो जाएगी। एक नेक्स्ट टाइम का मशवरा है मेरा, जी जी, मतलब यहाँ 300-350 से ज़्यादा लोग तो आते नहीं, ऐसे ही है। अगर कोई ऑनलाइन आप लोगों की फैसिलिटी कर दें, है ना, नहीं मतलब 350 पे आप ब्रेक लगा दें, अच्छा, मतलब बाकी जो आए वो मतलब वापस ना चले जाए, तो ऐसा मशवरा अगर देखें इस पे कोई हो सकता है। चले इंशाल्लाह सुन लेंगे इंजीनियर साहब, सुनेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह मुस्तफ़ी। माशाल्लाह जी, मुस्तफ़ी साहब कहाँ से आए हैं? लाहौर से। लाहौर से? लाहौर कौन सी जगह से? लाहौर ग्रीन टाउन से। ग्रीन टाउन से, वेलकम जी आपको जेएलएम अकेडमी में। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? इंजीनियर साहब को तकरीबन 6 साल से जानते हैं, 2019 से। आए थे आगे अकेडमी आए हैं? नहीं, ये पहली दफ़ा ही 295C की बरकत से ही आए। उन्होंने कुछ और करना चाहा लेकिन उसने इधर और बढ़ा दिया राशाल्लाह। यही बात, बस जब ये 295C का मसला चल रहा था ना, तो दिल में यही बात धड़कती थी कि क्यों नहीं अकेडमी पहले गए, ज़ियारत क्यों नहीं की इंजीनियर साहब की। पता नहीं अब किस्मत मौका देती है या नहीं, लेकिन हम बड़ी दुआएं करते थे, उम्मीद बड़ी थी कि फिर आएंगे, जगमगाएंगे और उनकी ज़ियारत को जाएंगे। तो हालात भी थोड़े से टफ थे, लेकिन फिर भी मैं रात जब सोया तो मैंने
सोचा कि मैं रात को निकलूँगा ताकि ना सुबह सुबह टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था रश ज़्यादा हो जाएगा। ऊपर से इंजीनियर साहब की वीडियो देखी, कहते लाहौर 7 बजे ट्रेन चलती है, 10 बजे पहुँच जाती है, वो 11 बजे पहुँची। रास्ते में मैं सोच रहा था कि इंजीनियर साहब को अर्ज़ करूं कि वो दरसों में कहें कि लाहौर वाले भी फजर टाइम ही पहुंच जाएं अगर अंदर आना हो तो रात को जब मैं सोया, मैंने 2 बजे निकलना था लाहौर से, लेकिन सुबह 5 बजे जाग आई। तो फिर मुझे ख्वाब आया, ख्वाब ये आया कि मेरे पास और भी लड़के हैं, तो वो नीचे से ना पैसे उठा रहे हैं। तो उन्हें मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पैसे नहीं, ये मेरे हैं, ये मेरी पॉकेट से गिर रहे हैं, तो ये आपको नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, किस के लिए ये पैसे हैं। तो ये जब मुझे वो ख्वाब आया, मैंने कहा आपके नहीं, ये मेरे हैं। तो मैं फिर उठा, तो फिर मैंने कुछ नहीं देखा, तो मैं फिर इधर आया। वो पैसे कराए गए थे? जी जी, ऐसे ही। सही हो गया। अच्छा जी, इंजीनियर साहब को देख लिया? जी जी, बड़ी खुशी हुई। सुना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया इनका? इनका तो जब से मुआहद हुए तब से ही अपडेट, बाकियों का होने वाला, कईयों का हो गया। तो अल्लाह करे सब का हो जाए, सब मुआहद बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, वारियत की लानत से निकल जाएं। बाकी मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब की वीडियो से पहले बरेलवी, कट्टर बरेलवी था। तो जब मैंने कुरान पाक खुद तर्जमे तफसीर से पढ़ा और आयते वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के पे पहुँचा, तो तब भी मैंने ना अपना फ़िरका छोड़ दिया उस सोच के। तो तब मैंने एक शेर लिखा था, वो भी आपको सुनाता हूँ। जी जी। शियाओ सुन्नियों दो बंदियों अहले हदीस लें अच्छी तरह पहचान, कलीम अब सुन्नी बरेलवी नहीं है फ़कत कुरान व हदीस का मुसलमान, चाहिए अगर दलील तो हाज़िर है ऐ बरादरान इस्लाम, पढ़ो कुरान में आयते ला तफर्रकू में अल्लाह का फरमान। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। मैं बस बाकी सब को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आखिरत का मामला, ये बहुत बड़ा ही एहसास है और ये दुनिया की बहुत अटल हकीकत है। तो उस वक़्त मौत से आने से पहले ख़ुद कुरान और अहादीस को तर्जमे से पढ़ें और फ़िरका वारियत की लानत से निकल कर मुस्लिम बन जाएं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? नासिर वेदावान। नासिर साहब कहाँ से? चकवाल रोड, गाँव जरमोट कला। माशाल्लाह जी, चकवाल से। वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। थैंक यू। सर कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? इंजीनियर साहब तो मुझे थोड़ा अरसा हुआ है, मेरे बड़े भाई थे कमर जमान साहब, वो सामने बैठे हुए हैं। ठीक है। सऊदीया में रहते हैं, वो तकरीबन 12-13 साल से रहते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी बरकत से अब पूरी फैमिली इंशाल्लाह मिर्ज़ा साहब के पास जमा हुए हैं, हम पूरी फैमिली आए हैं माशाल्लाह। कज़न है, भाई हैं। बेसिक हमारी जो फैमिली थी ना, हम जरमोट क्लास बिलोंग करते हैं और मेरे कज़न के जो पक्के हम देवबंदी थे, देवबंदी और मदरसे अभी भी चल रहे हैं। लेकिन मैं तबलीगी जमात में भी टाइम मैंने लगाया है। तो मैं फिर भाई साहब ने कहा, मैं मिर्ज़ा साहब से मुलाकात हुई है, पहली दफ़ा आया था मैं अपने बच्चों के साथ, अब सेकंड टाइम आया हूँ। 92 फाइल लगने के बाद मैं ये चाहता था कि इंशाल्लाह पहली दफ़ा मैं लाजमी जाऊँगा जब भी अकेडमी खुले। भाई सऊदीया से आए हैं, 35 साल सऊदीया में रहे हैं, उनके साथ हम सारे कज़न आए हुए हैं, भाई भी आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि दोबारा मुलाकात हो। अच्छा ये बताएं, 295C जब लगी, एक माहौल ऐसा बना दिया, उलमा आ गए, फतवेबाजी शुरू हो गई, इंजीनियर साहब के ऊपर फतवा लगा, 295C लगी, कैद में चले गए, नजरियाती कौंसिल का फतवा, कुरान बोर्ड का फतवा, एक पूरा ना एक माहौल बनाया हुआ, ज़मानत नहीं हो रही जी। तो क्या सोचते थे उस वक्त, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? मैं तो सोच रहा था कि काफ़ी मुश्किल वक्त है मिर्ज़ा साहब के लिए। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद थी इंशाल्लाह कि मिर्ज़ा साहब इस जंगल से इंशाल्लाह आसानी निकल जाएंगे, क्योंकि ये कुछ मैंने फेसबुक पे भी और अक्सर मैं इंटरव्यू सुनता था, कहते थे जी अकेडमी भी बंद, ये वो सारा कुछ सुनता था मैं कि इंशाल्लाह अब उनको जवाब मिल गया है। जो अकेडमी बंद करवाना चाहते थे, अकेडमी भी खुली है, मिर्ज़ा साहब भी हैं मौजूद हैं इंशाल्लाह। अब आवाम पढ़ी लिखी है, आवाम को समझ है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जो यंगस्टर हैं, मेरे बेटे हैं छोटे छोटे, एक 10 में पढ़ता है, एक 12वीं में पढ़ता है, वो इंशाल्लाह अब वो कहते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल होता है नई पुराने आदमी को इस छोड़ना किसी फ़िरके में हो, बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। क्योंकि मेरी फैमिली में थे ना, मेरे तो घर में है
जो इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको भी पता है कि ये बिलोंग करते हैं उसी फैमिली से है, इनके मदरसे भी हैं देवबंद का है। और मेरी आधे जो है ना खालाजाद हैं वो अहले तशी हैं। तो मैं इससे कहता हूँ कि वो सब सुनते हैं, उनको पता है। मैंने कहा नहीं, अब कोई फ़िरका नहीं चलेगा, फिरका नहीं चलेगा, फ़िरका नहीं जबरदस्त। चलेगा, फ़िरका नहीं चलेगा। अब मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, सब मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन जो तकरीर की है, लग रहा था मैंने कि कहा साहब की प्राइम वो आई है। मिनिस्टर ने नहीं की ये तकरीर, ये हमारे मिर्जा साहब ने तकरीर की है इंशाअल्लाह। देखो जी, मिर्जा साहब हैरान बोल रहे हैं। कर दिया उन्होंने। हाँ, हैरान कर दिया क्या बात है। तो मैं नारा लगाना चाहता हूँ, मेरे नबी सा है ही कोनी, तेरे बाबे ते शाही कोई। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? आसिम सईद नाम है जी। आसिम भाई कहाँ से? हरिपुर से आया हूँ जी। हरिपुर हजारा वाली साइड से? माशाल्लाह, वेलकम जी जीएलएम एकेडमी में जी आया। कब से जानते हैं इंजीनियर साहब जी को? मैं मेरे वालिद साहब जानते थे तकरीबन काफ़ी अरसा पहले से ना। वालिद साहब? जी, मेरा एक मोटरसाइकिल का काम मैं करता हूँ, मेरा एक शागिर्द है, भाई भी है, शागिर्द है। तो उसने बताया मुझे इंजीनियर साहब के बारे में। तो पहले मैं आया था जब ये इन पे केस था ना, तो 1 माह या कुछ 2 हफ्ते दिन पहले आया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मैं मुख्तसार एक बात करना चाहता हूँ अपनी, कि जब मैं मुख्तसार उधर वापस गया ना, तो 2 बंदे आगे, मेरे अजीज़ दोस्त, और 2 एक बड़े आगे, बोलते जी चलो आओ, तुम किधर गए थे? मैंने सारा बताया, मैं उधर गया था। तो उन्होंने बोला हमने उस्ताद साहब से बात कर ली है, मस्जिद में आओ, कलमा पढ़ो, तुम मुसलमान रहे ही नहीं। अल्लाह अकबर। वो कौन थे? वो मेरे दोस्त थे, अभी भी मेरे साथ। वो मौलवी साहब, वो मस्जिद वाले, वो कौन थे? बरेलवी थे, देवबंदी थे, कौन थे? ये मेरी जिधर वर्कशॉप है उधर ही उनका मदरसा है ना। फिर उन्होंने मुझे उनके पास ले गए। मैंने बोला चलो बात सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं भी थोड़ा शशोपन में आ गया। तो जब उनकी बात सुना तो मतलब उन्होंने यही बोला कि वो जो बंदे हैं उनकी कुछ बातें ऐसी हैं वैसी हैं, मतलब कोई सही टिका के बात नहीं बताई। वो जो मेरा दोस्त था उसने बोला जी कलमा पढ़ो वरना तो मुसलमान ही नहीं हो। मेरे घर में मैं मेरे वालिद साहब इंजीनियर साहब को तहे दिल से मानते हैं। तो बाकी जो 2 भाई हैं वो नाउज़ुबिल्लाह नहीं मानते। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। कोई बात नहीं है, इख्तलाफ कर सकते हैं, बात ये इख्तलाफ इल्मी होना चाहिए, कुरान और सुन्नत से करें। तो आज हम माशाल्लाह उधर से 3 बजे निकले हैं। 2 बंदे ये मेरे साथ है, ज़िशान भाई। अच्छा, जब 295C लगी तब तो आपके दोस्त और चढ़ गए होंगे कि तकी? वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेरी दुकान पे आए हैं। क्यों पता लगा? हमने क्या बोला था, आप किधर है तुम्हारा बंदा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे जहन में एक डाउट था, मैंने बोला या खुदा, ये जो पाकिस्तान में कानून है ऐसा ना हो कि जिस तरह और सच्चे बंदों के साथ होते हैं, बस इसके साथ अपनी मदद फरमाओ और इन बंदों के सामने हमें सच्चा। जब जमानत हुई और आज एकेडमी भी खुल गई है, आज क्या तासुरात है? आज बड़ी खुशी से आया हूँ। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इतना काम वर्कशॉप में छोड़ के आया हूँ। मैंने बोला कुछ भी नहीं। जब 12 बजे वर्कशॉप बंद की है, सुबह आना था, तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। दोस्त को, गराज वाले दोस्त को घर से फ़ोन करके बुलाया। 2 बजे हम गराज से फारग हुए, रात को 2 बजे। आधा घंटा हमने, ये कपड़े भी आप देखें मेरे उसी तरह गराज वाले हैं, आधा घंटा हमने घर में सिर्फ आराम किया। वालदा को बताया मैंने सुबह उधर जाना है, वालदा ने इजाज़त दी है, वालदा की दुआ ली है, इधर आ गए हैं। ये मेरे साथ है ईशान भाई। तो हम दोनों बस इधर आए, बड़ी खुशी हुई है। अभी अंजीर साहब को देख लिया, सुन लिया जी, सुना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। बस जेड़े लगे थे उन्होंने अपडेट हो गया। उनका अपडेट हो गया। बड़ी खुशी हुई है। सही हो गया, सही हो गया। चले जी, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन है? वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जैद अहमद है। जैद भाई कहाँ से हो? गुजरावाला राहवाली कैंट से। रावली कैंट से। ये भी भाई आपके साथ है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान भाई कहाँ से हो? गुजरावाला से। दोनों इकट्ठे दोस्त? कज़न है। दोनों कज़न है। कौन लेके आया? कब से जानते हैं इंजीनियर साहब को? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। आगे आए हैं जी एकेडमी? जी, एक बार आया हूँ। एक बार 8 मुहर्रम में, तब भी सेशन नहीं था, आज भी सेशन नहीं हुआ। आज हुआ है, लेकिन खैर आप लेट आए हैं। अच्छा, ये जो 295C वाला सारी एपिसोड हुई, गुस्ताखी का इल्ज़ाम, फतवे, इंजीनियर साहब अंदर, क्या सोचते रहे थे आप? क्या बीती? हमने तो अली भाई की जब वीडियो देखी थी ना, पता चल गया था। असल बात है कि अली भाई ने भी एक दफ़ा बहुत दफ़ा कहा कि यार आप कोई भी बात सुनते हैं ना, तो उसको ना पूरी जो वीडियो होती है ना उसको देखा करें, उसका जो पॉइंट होता है ना उसको देखा करें कि किस पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। ये नहीं कि आप अली मिर्ज़ा भाई नहीं, कोई भी उलमा, कोई भी शख्स ले लें, उसकी छोटी सी बात आप काट सकते हैं, कोई भी उसको जनाना रुख दे सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोच विचार कर लेनी चाहिए, क्योंकि
یہ لوگوں نے کہا جی یہ گستاخ رسول ہے نعوذ باللہ ایسا کرتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں, ہم بھی سوچ ہی نہیں سکتے یار ہم حضور پاک کی گستاخی کریں گے. پورے ایک عالم دین, کوئی بھی عالم دین چاہے شیعہ ہو, کوئی بھی ایسا کر سکتا. لیکن کیا کر سکتے ہیں اب لوگوں کو میری بات سنو, جب لوگ آپ کے اتنے مخالف ہوں وہ تو رہتے ہی سانس میں ہے کہ یار یہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرے اور اسے پکڑے. چلو ٹھنڈ پی گئی نا, بہت ٹھنڈ پی گئی ہے. ٹھنڈ پی گئی جدوں مینوں پتہ لگا سی نا کہ علی بھائی گرفتار ہو گئے نے, اللہ کے دعا کی کہ یا اللہ علی بھائی نو رہا کر, نماز پڑھ کے دعا کرنے کا یا اللہ علی بھائی دی مدد فرما. مینوں اتنا پتا سی کہ علی بھائی نا اگر ہون باہر آنا نا تو جی کہتے ہیں کہ داڑ دیا بندے نے آنا, ٹھیک ہے نا. علی بھائی دبا نہ لیا چلو, نہ وہ دبا نہ لیا چلو تو نہ اسی دبا نہ لیا. کیا بات, الحمدللہ زبردست. اچھا جی 295C لگ گئی, انجینئر صاحب اندر ہو گئے, آپ نے قیدہ چینج کر لیا, بزرگوں کو ماننا شروع کر دیا باقی اپنے قیدے سے؟ ایسا نہیں ہوا. اچھا, جب یہ واقعہ ہوا تو جو مخالف تھے جن کے ساتھ میری پہلے بھی اس بات پہ مرزا محمد علی انجینئر اور اپنے استاد صاحب کے بارے میں ہوتی تھی نا گفتگو, تو ان کو موقع مل گیا. انہوں نے بولا ہاں جی ہو گیا نا اندر, کوئی بات نہیں اگر اندر ہو گئے ہیں تو یہ تو ہمارے استاد ہیں, لیکن ہمارے جو نبی تھے وہ بھی تو طائف کی وادی میں گئے تھے, وہاں پہ جو لوگوں نے سلوک کیا تھا اس سے تو اتنا کم ہے نا. لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ تو ایک سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے جو ان کے مخالف تھے انہوں نے آخری ایک چال چل لی ہے, اپنا آخری جو ان کا پیندرا تھا انہوں نے سنبھال لیا ہے. لیکن اللہ پاک حق اور کے ساتھ ہوتا ہے, باطل کی ہمیشہ وہ جو ہے نا ہار ہی ہوتی ہے, حق کی ہی جیت ہوتی ہے. لیکن ہمارے علی بھائی حق پہ تھے, ہم بھی ان کے ساتھ تھے, اللہ بھی ان کے ساتھ تھا, اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی. تو اور اسی طرح آخرکار اللہ پاک نے اپنی مدد کی اور باہر الحمدللہ. آج دیکھ لیا انجینئر صاحب کو؟ جی دیکھ لیا, بہت خوشی ہوئی, میرا فرسٹ ٹائم تھا اور میں نے جب ان کو فرسٹ ٹائم دیکھا تو مجھے پہلے یہ بتائیں انتظار کتنا کیا؟ جی انتظار 9 بجے ہم ادھر آ گئے تھے, اور 9 سے لے کے 1 بجے تک تو ہم باہر بارش میں ہی رہے, وہیں پہ کھڑے رہے. لیکن ہم نے حوصلہ نہیں چھوڑا, ہم نے بولا کہ مل کے ہی جانا, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے ایک سیلفی ایک پکچر ہی کیوں نہ ہو کہ ضرور مل کے ضرور ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ غیور بھائی. غیور بھائی ماشاءاللہ, کہاں سے؟ لاہور سے. لاہور سے؟ لاہور کون سی جگہ سے؟ لاہور گرین ٹاؤن سے. گرین ٹاؤن سے. ویلکم جی جھیلم اکیڈمی میں. انجینئر صاحب کو کب سے جانتے ہیں؟ انجینئر صاحب کو تو ماشاءاللہ 1.5 سال سے ہی جانتا ہوں. آئے آگے اکیڈمی؟ ہاں جی, جولائی کے مہینے میں آیا تھا, یہی دسمبر 2025 کے 4 ماہ بعد دوبارہ 4 ماہ اکیڈمی اوپن ہوئی ہے. جی 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 جی. 295C لگ گئی, انجینئر صاحب اندر ہو گئے, فتوے آ گئے. جی جی. کیا کر رہے تھے سر؟ کیا کر سکتے ہیں, بڑا دکھ ہوا ہے. سب سے پہلے تو ان علماء کی جنہوں نے جو سب سے, میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے کیمرے کے توسط سے اگر ادھر بات جاتی ہے کہ جس بندے نے FIR کروائی ہے وہ ایٹ لیسٹ FIR میں دیکھے تو صحیح وہ خود کیا لکھوا رہا ہے, وہی الفاظ وہ خود تو کیا اس کے اوپر نہیں 295C لگتی تھی. ایک ایسا بندہ جو صرف کہتا ہے, پہلے جملہ میں صرف کہوں انجینئر صاحب کا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تو سر اس کے بعد کوئی چیز رہ جاتی ہے. تو جو لوگ انجینئر صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, جو علماء کھڑے ہوئے ہیں, ان کا کیا سٹیٹس رہ گیا یا ان کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں نا, ضلالت ہو گئی ہے, ان کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں, کیا ملا ان کو یہ سب کچھ کر کے؟ جو 4 لوگ ان کو سنتے بھی تھے انہوں نے بھی کہہ دیا یار یہ تو واقعی ٹوپی ڈرامہ ہے سارا, انہوں نے جو ہمیں گھمایا ہوا ہے, امت کو گھمایا ہوا ہے. یہ کسی کو بھی اٹھائے اور منہ اٹھا کے انہوں نے جی کفر کا فتویٰ لگا دیا اگلے پہ. توبہ یار, اس کو دیکھو. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے ہم پر بھی, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ انہوں نے انجینئر صاحب کو اس مسئلے سے نکالا. یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. جی جی ضروری بات ہے, ہمیں تو پتہ, ہم نے فیس کیا. یہ بہت گہرا مسئلہ ہے. یہ وہ انجینئر صاحب کی آج جو بھی سیکشن ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک جج بھی واقعی اس کا فیصلہ سناتے وقت وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ بھائی اگر میں فیصلہ سناتا ہوں تو کل کو یہ نہ ہو کہ یہ کٹر بریلوی عوام یا کوئی اور بندہ کوئی غازی بنے اور اٹھے اور میرے پیچھے نہ کوئی چڑھ دوڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے جس میں کوئی شک نہیں. آگے انجینئر صاحب دیکھا؟ جی الحمدللہ. سنا ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ جی جی جی. انجینئر صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے؟ نہیں, ان کا کہاں پہ ہونا ہے جی, مخالفین کا ہی ہوگا, ظاہری بات ہے. بلکہ ان کو تو موقع ملا ہے زیادہ تحقیق کرنے کا.
ज़्यादा नॉलेज और लेने का। बेशक ऐसे ठीक है, इंशाल्लाह आने वाली पॉडकास्टों में हम देखेंगे उनके जो सेक्शंस हैं उनमें हम देखेंगे कि हमें इंशाल्लाह और इल्म मिलेगा। अच्छा, कब और तहकीक मिलेगी। कितना वेट किया ये बताएं जरा आज। सर जी एक एक दिन निकालना मुश्किल है। नहीं अकेडमी में आया, पता पहला सेशन हो चुका, दूसरा सेशन है। जी तकरीबन मैं तो अगर आप पूछें तो मैं रात के तकरीबन 1 बजे से घर से निकला हूँ लाहौर से। अकेडमी के बाहर कितने बजे पहुंचे थे? तकरीबन हम सुबह अकेडमी के बाद 7:30 पौने 8 बजे तक पहुँच चुके। लेकिन नंबर नहीं आ सका? नंबर नहीं आ सका, नंबर आया तकरीबन 2:30 ये कोई 12:30 1 बजे के। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जी। बारिश भी थी, मौसम भी ठंडा था, फिर भी आप लोग खड़े रहे। उस्ताद से मोहब्बत है जी। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको मोहब्बत है जी। उन्होंने माशाल्लाह बड़े हमारे अकायद बेहतर किए हैं, बहुत बेहतर किए हैं। जो हमें नई चीज़ें पता थी, हम यकीन माने समझ लें कि 70% चीज़ें मैंने उन्हीं से ही सीखी हैं। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह जी। हम भी उस्ताद जी को अपने को दुआओं में याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर कहाँ से है भैया? लाहौर कैंट एरिया से। कैंट एरिया से। लोहरिया भी छाए में है जी, बड़ी तादाद में लोहरिया आए हुए हैं। मोहब्बत है अपने उस्ताद मोहतरम से। अच्छा जी, कब से जानते हैं उस्ताद को? मुझे तकरीबन ना 2-3 साल पहले तारुफ हुआ था। बेसिकली मैं ना एक ऑफिस मैंने ज्वाइन किया था, प्राइवेट जॉब। तो वहाँ पे मेरे जो सीनियर थे ना, वो इनके स्टूडेंट थे। उन्होंने मुझे कहा यार आमिर तो इसको ज़रा सुन, तुझे कैसे लगता है? मैंने सुनना शुरू किया तो मैंने बिल्कुल ही एक 180 डिग्री चीज़ें सुनने समझ लग रही थी कि यार ये क्या चीज़ है, ये चीज़ें तो कभी सुनी नहीं है। मसलन मैं सबसे बड़ा जो हैरान हूँ इस चीज़ से था कि मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ वो भी गलत है, जो बचपन से पढ़ रहा हूँ। ये सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे ट्रिगर की है ना, वो ये है कि मैं नमाज ही गलत पढ़ रहा हूँ। बताया ही गलत किया। 2-3 साल से तारुफ है इनका। अच्छा, जब 295C लगी, उलमा के फतवे, इंजीनियर साहब अंदर, बारिश आदमी हैं, आप क्या सोच रहे थे? सर जी मैं ना जब इन पे 295C लगी है ना, मैं उससे तकरीबन 2-3 दिन पहले ना अपनी कंपनी की तरफ से उम्रे पे गया था। अच्छा हुआ ये है कि मुझे ना उधर बताया गया, कुछ वहाँ पे मेरे कलीग हैं वो बड़ी टोंट करते हैं, मुझे कहते हैं तेरा उस्ताद पढ़ेगा गया ही ये मैं पढ़ा रहा। मैंने कहा यार मेरा उस्ताद है ना, मैं कहा मुझे पता है आ जाएगा भाई, मैं कहा जो मर्ज़ी कर लो, मैं कहा मुझे समय लग जाएगी। और मैंने वहाँ पे खाना काबा के सामने खड़े हो गए अपने उस्ताद के लिए दुआएं की, मुझे पता था ये झूठी है। ठीक है, अभी तक वो टोंट करते रहे। जब ये मतलब कि रिहाई वाला मामला हुआ तो कहते हो, मैंने बताया, मैंने कहा भाई वो तो ज़मानत हो गई है। अच्छा रिहा तो नहीं ना हुआ? मैं कहा भाई रिहा भी हो जाएगा। अच्छा जब रिहा हुआ मैंने कहा बताया रिहाई हो गई है। अच्छा लेक्चर तो नहीं ना हुआ? मैंने कहा भाई लेक्चर भी होगा। अभी 21 दिसंबर आई है, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, 21 दिसंबर है, मैंने कहा जाके मैं पिक्चर बना के आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये है कि सच्ची सबसे बड़ा दुख है ये कि यार ये एक बंदा जो अपना बयान शुरू करता है दरूद पाक से, ख़त्म दरूद पाक से करता है। सबसे बड़ी बात आपको बता रहा है कि यार ये कुरान पाक है, इसमें ये लिखा है, ये हदीस है, इसमें लिखा, आप उस पर 295C लगा रहे हो यार। असल दुख भी इंजीनियर साहब को यही था, कैद की तकलीफें वो पर कर लेंगे, लेकिन दुख ये था कि यार उस नबी की गुस्ताखी, उसकी शान में गुलू, यानी इस तरह का मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया, यही दुख था उनको। और मैं कहता हूँ कि जो लगा रहे हैं इल्ज़ाम, खुद उनकी तालीमात देख लें, उनकी किताबों में देख लें क्या क्या लिखा हुआ है। उन पे 295C का उनको तो मैं कहता हूँ कि और ही करना चाहिए उनके साथ। ठीक है, लेकिन हमारे उस्ताद के साथ उन्होंने ज़्यादती की है। लेकिन इस शर में से खैर ये निकली है कि जो लोग जिनको अभी तक तारुफ नहीं था ना, उनको भी पता लग गया कि ये बंदा कौन है। उन्होंने भी जब सर्च किया वो कहते हैं यार नहीं। सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि हमारे उस्ताद की करामत ये है कि लोग देख रहे हैं, मतलब कि वो उलमा जो इनको मतलब बुरा भला कहते थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं यार ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी करामत है हमारे साथ की। बड़ी बात है जी। ये देखे छांडी हो गया है, कुछ अहले हक उलमा और अहले वो जो थे दूसरे उलमा वो छांडी हो गए हैं। ठीक है, कुछ लोग हक के साथ खड़े हो गए, उन्होंने नहीं देखा हमारा कौन सा मकतबा फिक्र है, वो हक के साथ खड़े हो गए। सलाम है जी, सबको सलाम है। होना भी ऐसे ही चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा एक और बात ये है कि 295C लगी है ना, वो इसका मतलब तो यही है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। लेकिन जो असल में जिनका ये तारुफ करा रहे थे, जिन्होंने गुस्ताखी की हुई है इससे पहले किताबों में, तो इनकी जो बेशुमार किताबें, उन्होंने जो गुस्ताखी की हुई थी उनको एक्सपोज कर रहे थे, और जो कर रहा था उसको ही अंदर कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम की शान बताने वाले पर 295C लग गई है, और जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ करते रहे उन्होंने लगा दिया। चलो जी,
دیکھیں جی بات یہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے, ہمارا کام ہے صبر کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آج یہ ننگے ہو گئے ہیں, سارے کے سارے ننگے ہو گئے ہیں. اچھا جی آیا استاد آپ کا, دیکھا سننا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اس کا؟ نہیں ان کا تو نہیں ہوا. اچھا ان کا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا استاد میرے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اور میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کریں گے, ان کی اپنی آپ سمجھ لیں کہ کیا ان کی اوقات ہے کہ ان کے پلے اب کچھ رہ ہی نہیں گیا. یہ تو نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے, بلکہ ان کا ہو گیا, ان کا ہو گیا سافٹ ویئر اپڈیٹ. جی جی ایسے ہی. اچھا الحمدللہ آگے بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا ان کا انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کتنے بجے پہنچے تھے باہر؟ میں تو آج نا بیسیکلی اس کے بعد کسی کی تصویر نہیں ہوگی. ایک تو سردی تھی, ٹرین ہماری تھوڑی لیٹ ہو گئی تو میں تقریباً 10:30 یا 11 بجے ہم پہنچے ہیں. تو اس کے بعد 2-3 گھنٹے نیچے ویٹ کیا ہے. چلے اور باری آ گئی, باری آ گئی. استاد محترم نے کہا جی پہلا سیشن ہو گیا, 800,000 بندہ تصویریں کھنچوا کے گیا ہے, دیکھ لے وہ بندہ کہاں تک تھکاوٹ کا لیول چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں سب سے ملنا ہے جی, ہمارے استاد کی محبت ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ بھیا, جزاک اللہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بچہ؟ روحان بٹ. روحان بٹ, بٹ ہی لگ رہا تھا مجھے ماشاءاللہ. کہاں سے ہے؟ لاہور سے. لاہور سے آیا؟ جی. اکیلا آیا؟ نہیں میرے کزن ہے ساتھ, میرے 2. بڑے ہیں چھوٹے ہیں؟ بڑے ہیں. اچھا میں کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو نہیں لے آیا؟ نہیں. اچھا اچھا. اچھا جی روحان, وہ تجھے لے کے آئے ہیں؟ جی. جانتا ہے کدھر آیا تو؟ جی. انجینئر صاحب کو جانتا ہے؟ جی. کب سے جانتا ہے؟ 3 سالوں سے. 3 سالوں سے؟ جی. اچھا تو گھر والے روکتے نہیں؟ نہیں, گھر والے بھی پسند کرتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. اور یہ جو بھی 295C لگی ہے انجینئر صاحب اندر ہو گئے, بہت دکھ ہوا تھا. میں دعائیں کی تھیں ان کے لیے, تو جب وہ باہر آئے تھے تو میں نے شکر ادا کیا تھا اللہ کا کہ شکر ہے الحمدللہ باہر آئے. تو بہت خوشی ہوئی تھی اس دن مجھے. ملے؟ جی ملا ہوں, تصویر اتروائی ہے میں نے. آج دیکھا استاد محترم کو؟ جی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے انہیں, تو بہت خوشی ہوئی دیکھ کے انہیں. تو چہرے پہ ان کے نور بہت خوبصورت ہیں, جتنا ویڈیو میں آتے ہیں اس سے زیادہ وہ خوبصورت یہاں پہ ہیں. اور وہ سنا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ نہیں ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر سکتا. وہ کر دیں گے لوگوں کا اپڈیٹ. صحیح ہو گیا. اندر گیا تھا, ملاقات بھی کر کے؟ جی ملاقات کی ہے. انہیں میں نے بتایا میں آپ کا فین ہوں بہت بڑا. اچھا. انہوں نے کہا جزاک اللہ. تو اچھا کتنے بجے پہنچے تھے یہاں پہ جہلم میں؟ میں جہلم میں پہنچا تھا صبح 7 بجے. 7 بجے؟ جی. کب سے نیچے کھڑے ہو؟ بہت دیر سے, 12 بجے ہم اوپر آئے ہیں میرے خیال سے. تھک گئے ہو گئے, بارش بھی تھی. ہاں نیند بھی نہیں پوری ہوئی تھی نا, سوئے بغیر آئے تھے. تو چلا جانا تھا واپس؟ نہیں, پہلی دفعہ خواہش تھی میری انجینئر صاحب سے ملنے کی, تو پھر کیسے, نیند بھی قربان انجینئر صاحب پہ. تو دیکھ لو انجینئر صاحب کو پتا تھا کہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ان سب سے میں نے ملنا, چاہے جو مرضی ہو جائے. جی. بہت اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. اینڈ پہ میں نعرہ لگانا چاہوں گا, لگانا پتر. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ حسیب. کہاں سے؟ فیصل آباد سے. فیصل آباد. یہ بھی اچھا ہے نے, ٹیر دا ٹیر فیصل آباد. ٹرک آئے کوئی شک نہیں, بڑا شہر ہے جی, بڑے لوگ ہیں اور محبت کرنے والے لوگ ہیں, کوئی شک نہیں. ویلکم جی جہلم اکیڈمی میں. کب سے جانتے ہیں انجینئر صاحب کو؟ 3 سال سے. 3 سال سے آگے آئے ہیں اکیڈمی میں؟ نہیں پہلی بار آئے ہیں. پہلی بار. اور اسی دن آنا تھا جس دن آپ کو پتا تھا سیشن 4 ماہ بعد دوبارہ سٹارٹ ہوا, رش بھی بڑا ہونا ہے. آج زیادہ محبت ہی نہ علی بھائی سے کہ کافی دیر بعد باہر آئے ہیں تو ملنا ہے, تو سارا تو پھر اچانک پلان بنایا ہے ہم نے, اور پھر ہم آگے. 295C لگ گئی, انجینئر صاحب اندر ہو گئے, علماء کے فتوے آ گئے. کیا کرتے رہے ہو, کیا سوچتے رہے ہو, کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں سوچا, ہمیں پتہ ہے کہ علی بھائی حق پہ ہیں, علی بھائی صحیح بات کر رہے ہیں. 295C بنتی نہیں ہے جس پر انہوں نے لگائی تھی پہلے 3 MPO کے تحت انہوں نے کیا تھا اندر. 295C ایسے بنتی نہیں ہے جس طرح انہوں نے لگائی تھی, غلط تھی. ہمیں پتہ تھا علی بھائی حق پہ ہیں, صحیح بات کر رہے ہیں, غلط بات کر ہی نہیں رہے, تو ہم نے تو سوچا ہم ہمیشہ علی بھائی کے حق میں کھڑے تھے. الحمدللہ. اچھا جی استاد محترم 4 ماہ کے بعد دوبارہ اکیڈمی میں آئے, آج آپ نے دیکھ بھی لیا, کیا لگتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ تو نہیں ہو گیا استاد کا؟ نہیں. اچھا یہ مولویوں کا کریں گے ابھی سافٹ ویئر اپڈیٹ. آپ دیکھتے جائیں, ابھی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی اور زیادہ. اچھا کتنی دیر سے آپ ادھر نیچے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو کل کے آئے ہوئے ہیں, تو صبح آئے تھے, صبح انٹری نہیں ہوئی, تو پھر سیکنڈ ٹائم پھر اندر آئے. صبح رش دیکھا تھا؟ رش بہت زیادہ تھا. ابھی کتنے بندے بیچارے چلے ہوئے ہوں گے؟ چلے گئے, ظاہری بات, اور بارش بھی تھی اور موسم بھی ٹھنڈا لگی تھی. چلے ملاقات ہو گئی جی, بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ عرفان شہزاد. عرفان بھائی کہاں سے؟ میں لاہور سے. لاہور. یہ ویلکم جی لاہوری ہو.
जज़ाक अल्लाह जी, खुश रहो। शुक्र। लाहौर बहुत आया हुआ है जी, इंशाल्लाह प्यार ही बड़ा करता है इंजीनियर साहब से। बेशक, कोई शक नहीं इसमें। अली भाई ने काम ही ऐसा किया है कि हमें जो सीधे रास्ते पे लगा दिया ना, कि हम दरबारों से जान ही छूटती थी कि भी गोश्त पाक ऐसे कर दिया, गोश्त पाक ऐसे कर दिया। ऐसे बताया कि जो ताकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है तो वो बुज़ुर्गों के पास क्यों आ गई। अगर ताकतें होती तो इस वक्त अली भाई बाहर ना होते और ये बुज़ुर्गों के मानने वाले अंदर ना होते। ये अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर थी जो अल्लाह ताला ने अपना करके दिखाई है, कि जो हक को हक करके दिखा दिया और बातिल को बातिल करके दिखा दिया। कि जो हमें शुरू से बचपन से हमारे बाओ अजदाद को बता रहे हैं कि ये करामत होती है, बुजुर्ग ऐसे करते थे ऐसे करते हैं, हमें अभी तक कोई करामत नहीं नज़र आई। करामत अल्लाह की नज़र आई जो अली भाई की सूरत में कि हक वाजिया कर दिया है, कि जो झूठा लोग थे वो झूठों को झूठा करके दिखा दिया, जो सच्चे थे वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह सेशन 2-3 घंटे का अटेंड किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई हमारे सामने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक। 295C लग गई, इंजीनियर साहब अंदर हो गए, फतवे आ गए। इरफान भाई क्या सोच रहे थे कि क्या होने जा रहा है? 295C हम तो अली भाई के साथ करीबन को कोरोना से अटैच हैं, 6-7 साल से सुन रहे हैं, तो हमें पता था कि ये झूठा दावा इन्होंने किया हुआ है अपनी तरफ से, क्योंकि इन्होंने एक हथियार अपना खुद से हुकूमत पे प्रेशर डाल के खुद से बनाया था कि कोई भी अगर हमारी बात ना मानता तो उस पर ये 295C तो बना लगा दो, झूठी लगा दो। क्योंकि अभी भी इतने ज़्यादा जो ताहिर अशरी साहब हैं वो कह रहे थे अगर मेरे भाई के ऊपर कोई करप्शन साबित कर देता ना तो आपको मेरा खून माफ़ है, आप मुझे बादशाह मस्जिद के ऊपर फांसी दे दें। तो अब वो उनके भाई निकल आए हैं, वो अबू माविया साहब जो हैं वो निकले हैं, औरतें रो रही हैं कि इनके भाइयों ने हमारे ऊपर 50-50 लाख मांगा है, उनके ऊपर झूठी 295C कटाई हैं। ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि देखा कि यार फ़िरकावारी खत्म होनी, जो अली भाई शुरू से कह रहे थे, तो उन्होंने इतनी कोशिश की है, उलमा को बैठा के हमारे वज़ीर साहब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको अब इतना ख्याल आ गया। शायद मुझे लगता है कि वो ट्रम्प साहब के कहने पे ख्याल आया है कि भी अपने मुल्क का ख्याल करो, सारा हमने नहीं ख्याल करना। तो अल्लाह का शुक्र है जैसे भी हैं आपस में मोहब्बत भाईचारा। हम तो पहले ही हर किसी की मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़े थे, हम नफ़रत ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि हाथ बांध के भी नमाज़ पढ़े हैं, छोड़ के भी पढ़ रहे हैं, उस मस्जिद में भी जा रहे हैं, उस मस्जिद में जा रहे हैं, उनको भी चंदा दे रहे हैं, इनको भी चंदा दे रहे हैं, कि जो हमें मुसलमान नहीं समझ रहे हैं उनको भी चंदा दे रहे हैं, जो समझ रहे हैं उनको भी चंदा दे रहे हैं। तो हम तो अपनी तरफ से एक तरफ से कोशिश कर रहे थे अली भाई के साथ अटैच। देखो अली भाई की वजह से हमें बहुत हौसला मिलता है कि कौन सी बात करने वाली कौन सी बात नहीं करने वाली। नहीं तो अल्लाह माफ़ करे अली भाई ना होते तो शायद हम आज दाता साहब ही होते लाहौर में, यहाँ ना होते जेल में। इंजीनियर साहब आगे आज बैठे हैं, उन्होंने अवाम से खिताब किया, क्या नजर आया है? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? सॉफ्टवेयर अपडेट जो मौला अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं ना वो उस पैटर्न पे रहते हैं जिस पैटर्न में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र गफ़ारी को चलाया था कि अबू ज़र ये देख रहा है बहुत पहाड़ सोने का, अगर मेरे लिए अल्लाह कर दे तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे कि भी अल्लाह की राह में हरात कर दूं। बेशक बेशक। तो उन्होंने अबू ज़र गफ़ारी बाद में भी पूरी दुनिया को बताते हैं कि यार तुम नबी के सहाबा हो, इस पैटर्न में चलो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर चलता देखा ना सहाबा के बाद। तो हमने अली भाई को देखा है कि वो मौला अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चल रहे हैं, नबी की सुन्नत पे चल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर उसका अपडेट क्या करना है। एक बंदा हक बयान कर रहा है, कुरान बता रहा है, हदीस बता रहा है, आप खुद उसको सर्च कर सकते हैं। जो भी उलमा इतनी देर से बता रहे हैं कि ये ऐसे हो गया ऐसे हो गया, उसको आप सर्च कर ही नहीं सकते, वो किसी किताब में है ही नहीं है। किसी किताब में होगा, कुरान में होगा, हदीस में होगा, फिर ही इसको सर्च करेंगे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई ने जो भी बताया हम उसको सर्च करते हैं। मिनोन वैसे ही कुरान में लिखा होता है, हदीस में लिखा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर अपडेट उनके हो गए हैं जो अब अंदर हैं। तो अली भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खत्म नबूवत पे खड़े हैं, उस पर पैरा दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम खत्म नबूवत के अली भाई के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है भाईजान? जी मेरा नाम अली रज़ा। अली रज़ा भाई कहाँ से? गुजरांवाला से। गुजरांवाला से। बच्चा थक तो नहीं गया? पहले नाम बता अपना। मेरा नाम मोहम्मद अजान। मोहम्मद अजान। आप मुझे लगता है मेरे पर पहले भी आए हुए हो ना? हाँ अच्छा जी, आप इसको ले आते हैं यार, इसका दिल करता है मेरे साथ आने के लिए। सच्ची बात है, थकता नहीं है। अच्छा जी अली भाई ये मुझे बताएं, आप आगे भी आए हैं जी जी अकेडमी में, इंजीनियर साहब को पहले से जानते हैं। 295C लग गई, इंजीनियर साहब अंदर हो गए, क्या सोच रहे थे उस वक्त कि क्या होगा? बहुत गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ, बहुत ज़्यादा। मैंने तो उसी दिन जो है अपने माइंड से सेशन दे दिया था कि ये बंदा जानबूझ के सिर्फ एक बुग़्ज़ की वजह से अंदर किया गया है। ये बंदा बाहर होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए, हमारे लिए बेस्ट है ये बंदा। हमें इसने इल्म की रोशनी अता की है इस बंदे ने, इंजीनियर साहब ने। मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक ग्रोह है, एक मुसलमान है, एक मंजिल है, एक कुरान है, एक किताब है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो
ज़बान ज़द-ए-आम है जी ये बात। हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बच्चे की जुबान पे है, बोल के दिखाओ। मेरे नबी शाही को नहीं, तेरे बाबे शाही को नहीं। पूरा बोलो। वो जो स्टाइल से बोलते हो आप, हाँ बोल दो वैसे ही। वो आपको इंजीनियर, आपको इंजीनियर अच्छा भी लगता, कोई बात नहीं, हमें आपके बाबे अच्छे नहीं लगते। बाबो तैयार हो जाओ, अब बाबाओं के बाबा आ रहे। आगे मेरे नबी शाही को नहीं, तेरे बाबे तो शाही को नहीं। चलो ऊंची आवाज से कहो, बाबो तैयार हो जाओ, अब बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। बाबो अब तैयार हो जाओ, अब बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और किसी ने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर भाई कहाँ से? लाहौर से। वेलकम जी JLM अकेडमी में। आगे भी आते हैं माशाल्लाह, पुराने साथी हैं। आपसे तो सिर्फ ये पूछूंगा, 295C लग गई, इंजीनियर साहब हो गए अंदर, फतवे आ गए, क्या सोच रहे थे, क्या होगा? देखिए जी, जिनके पास बात करने के लिए ना हो तो वो दूसरे हटकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने करके देख लिए हैं सारे, तो रिजल्ट आपके सामने है। बेशक बेशक। तो हक के साथ तो अल्लाह ही है ना। तो आपको पता है, फिर आपके सामने बैठे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने तो बहुत कोशिश की है, तो कोशिश वही तदबीर है जो अल्लाह ही बेहतर करता है, वही होती है। इंसान जो मर्जी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। इंजीनियर साहब आए, बैठे, दोबारा आवाम से खिताब भी किया, बात भी की, क्या लगता है कुछ चेंज आया, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? नहीं, चक्कर ज़्यादा पैशन आ गया है पहले से। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ जी, थोड़ा ज़्यादा पैशन आ गया। और जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जिन्होंने इंजीनियर साहब के साथ ये सारा कुछ किया, आज उनका अपना हो चुका है। जो करवाना चाहते थे वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो ढूंढे ना आप। वो तो हमें मिल ही नहीं रहे। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल। वो तो पहले सड़कों पे आम थे, तो अब कहाँ है वो? क्योंकि बात तो उस्ताद की मानने वाली होती है। वो जो उस्ताद ने स्टार्टिंग की है कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। हमने गौर ही किया बस, इससे पहले गौर नहीं किया था, अब गौर करते हैं हर बात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता चल जाएगा बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और। सही होगा, मुलाकात हो गई इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बच्चा? अबू सुफियान। अबू सुफियान कहाँ से हो? गुजरावाला से। आपका? अली रज़ा। कहाँ से? गुजरावाला से। आप? अदनान। कहाँ से? गुजरावाला से। ताहा। गुजरावाला जी। सारे दोस्त हैं? जी सब दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इकट्ठे एक ही गली में। एक ही गली में। गुमराह, सब गुमराह हैं। अच्छा जी, ये बताएं अभी किसका प्लान था आने का? सबका बैठ के। अभी तो कुछ लोग और थे, वो मौके पे फरार हो गए। वो कहते हैं जी हमने नहीं जाना। वो क्यों? वो बस कई लोग कहते हैं मेरी अब्बा नहीं मानेंगे, मेरी अम्मा नहीं मानेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं चलो ठीक है, और कुछ वैसे ही नाराज हो गए जी। अच्छा, वो मुकम्मल तौर पे गुमराह नहीं ना हुए। आप लोगों में से सबसे पुराना तारुफ किसको है इंजीनियर साहब का? वो आया नहीं आज अभी इसमें जो खड़े हुए। इसमें ये भाई और मैं। ठीक हो गया। यानी ये जो 295C लगी और आपको पता है कि फतवे लग गए, इंजीनियर साहब अंदर चले गए, क्या सोचते रहे हो क्या होगा? 295C ये जो मसला था ना सारा, बेसिकली वो देखना है ना हमने। ये बनती नहीं थी 295C। इंजीनियर साहब तो एक यानी कि नकल कुफर ना बाशिद, एक नकल कुफर की नकल कर रहे थे, तो उसके ऊपर 295C लग जाए तो ये मानने तो नहीं ना आती। इसी वजह से तो बरेलवियों के जो बहुत पुराने जो है ना बाबे, वो उठ के आए हैं, वो कह रहे हैं यार ये उत्ते अगर इन्हों 295C लग गई, इस बंदे ने तो अमर हो जाना। ਇਹ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸਾਈ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 295C ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਆਏ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। पहले तो दसो कितनी देर थले वेट किया जी? मैं तकरीबन 9:30 बजे का आया हूँ नीचे। 9:30 बजे के आए मैं, और बारिश भी थी और नीचे खड़े रहे। चले जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके हौसले को भी दाद है। मोहब्बत करते हैं हक वालों के साथ। उस्ताद मोहतरम ने भी सबूत दिया है, सबसे उन्होंने कहा 800,000 बंदे से तकरीबन मिल चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कहा फिर मिलना है, कोई बात नहीं। मोहब्बत है कि वो खड़े हुए हैं,
उनकी मोहब्बत है, वो तस्वीरें बनवा रहे हैं, उनकी मोहब्बत है, हर बंदे को एक टाइम दे। जी जी ऐसे ही ऐसे जितना हो सकता है वो अपने लिए, यानी कि हमारे जी जी इस तरह यही है। 4 माह बाद आज सेशन हुआ है, क्या नजर आया उस्ताद का? सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उस्ताद ने इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हर पार्टी का, मैं तो ये कहूँगा जो पार्टी ने कहा था ना कि उस्ताद का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ये ज़िंदा करामत है हमारे उस्ताद की, जो करामतें कहते हैं ना हम आपको दिखाते हैं, ये ज़िंदा करामत है। जिस पार्टी ने इंजीनियर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट करना था वो पार्टी अपडेट हुई, फिर वो पार्टी के रहनुमा अपडेट हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं अपने उस्ताद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके साथ आज मोहब्बत बड़ा पैगाम दे रहे हैं, हर लिहाज से हक बात के साथ हैं हम इंशाल्लाह। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर शाह। मोहम्मद ज़ुबैर शाह जी, वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। कहाँ से? जज़ाकल्लाह खैरा, मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। ये शाह जी आपसे इसलिए पूछते हैं कि देखने वाले जो है ना उनको भी पता चल जाए, वैसे आप हमारे पुराने साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी शाह जी, 295C लग गई इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब हो गए अंदर, बारिश आदमी हैं, आप भी लोगों में उठते बैठते हैं, क्या आपने क्या फेस किया? लोग क्या पूछते थे? कभी वसवसा आया कि क्या वाकई इंजीनियर साहब ने कुछ कर दिया, क्या हुआ? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि इंजीनियर साहब आज तक जो तालीम दे रहे थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और उन्हीं का रास्ता था, और एक ऐसा शख्स जिसका उठना बैठना उड़ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार हो। बेशक हम तो एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं सोच सकते कि वो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी कर सकते। बेशक जी बेशक। ये एक प्री प्लान गेम थी, और ये लोग जो अपने अपने चंदा बुकों से और उधर उनके जो है ना फंड्स कम हो रहे थे, और उनको पता चल रहा था कि उनका झूठ खुलकर सामने आ गया है, तो वो लोगों ने एक प्री प्लान गेम की इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़, एक बेवकत सा पर्चा उन पे कराया 295C। वो लोग भी चीख उठे जो सख्त तरीन दुश्मन थे इंजीनियर साहब के, कि यार ये क्या हो रहा है। एक ऐसे शख्स पे जिसका दुरूद से बात शुरू होती है दुरूद पे ख़त्म होती है, उस पे ये लोग इतनी दलेरी से 295C लगा रहे हैं, और लगाने वालों ने भी नहीं सोचा जी जी कि हम क्या कर गुजरे, बिल्कुल कर गुजरे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत ताकत वाली है, जिन ने उनके साथ किया अल्लाह ताला ने इसी दौर में उन्हें दिखा दिया जी 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 कि मेरे वली के साथ तुम ऐसा करोगे। अल्लाह अकबर। और इस वक्त मैं कुछ लोग अभी जो मेरी नज़र में है, मुझे उन पे बहुत दुख है, ख़ासकर जमात इस्लामी, जिनके मैं खैर उनको तो नहीं कह रहा, मौलाना अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह एक अच्छी अजीम शख्सियत थी, बेशक, लेकिन उनके पीछे जिन गीदड़ों के हाथ में है ना, तो वो गूंगे शैतान बने रहे। ऐसे ही है जी, कम से कम उनके मुंह से भी अल्फाज निकलने चाहिए थे। ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता था कि नकले कुफर ना बाशत। आप अगर हम सब ये बात जानते हैं कि कोई बंदा तालीम कर रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं, तो ये जो है नकल कर रहे होते हैं, तालीम कर रहे होते हैं कि ऐसा ही ऐसा कहते हैं, और सारी दुनिया सारे उलमा इस चीज़ को जानते हैं, एक्सपोज हो गए, और बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज हो गया। और इस चीज़ का ये सब फ़ायदा हुआ है कि तमाम लोगों को अवेयरनेस हो गई है। इंजीनियर साहब ने तो 103 दिन काटे, लेकिन ये तो उनके लिए इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के लिए उनका अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा होंगे इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। और उनका और ये एक लम्हा उनके लिए जो है ना जी जी कार खैर होगा। बाकी जो है ना इंजीनियर साहब पर ये जो तोहमत लगाई गई, और जिन ने लगाई, अल्लाह पाक ने उनके साथ उनको अजर दिया इस दुनिया में, और आखिरत में भी देंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह इंजीनियर साहब आज मौजूद हैं और दावत का काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उनके लिए हमारी दुआएं भी हैं, और हमारी जान और हमारा खून उनके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शहीक नाम है। मोहम्मद शहीक? शहीक जी। शहीक इसका क्या मतलब है? मोहम्मद शहीक एक खजूर है, साफ़ सुथरी खजूर। माशाल्लाह। जी जी। कहाँ से आए हैं? ज़िला बन्नू से। बन्नू से? वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में। जज़ाकल्लाह। खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। अच्छा जी,
کیا کرتے ہیں آپ؟ मैं दर्स तदरीस के शुबे से वाबस्ता हूँ। कौन से मकतब से? ये दर्स निज़ामी के शुबे से। हाँ, नहीं देवबंद से, बरेलवी से, अहले हदीस से? नहीं, इसका कोई नहीं। अच्छा, इसका कोई, अच्छी बात है जी, वेलकम जी, वेलकम, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र से कलमाना चाहिए जी, सब। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, आलम दीन हैं, चीज़ों को समझते हैं जी, बिल्कुल। पहले तो ये बताएं, इंजीनियर साहब को कब से जानते हैं? तकरीबन ये 10 साल से मैं जानता हूँ। 10 साल से? जी जी, माशाल्लाह। जी जी। और आगे भी आए हैं यहाँ पे? पहली दफ़ा आए। पहली दफ़ा आए हैं? जी जी। अभी 295C लग गई, बड़े बड़े उलमा आ गए, उन्होंने आके कहा कि ये गुस्ताख है, लगा भी दी, जेल भी भेज दिया, और भी बड़ी तकारीर, पता नहीं क्या क्या। क्या समझते हैं मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं? ये तो ठीक नहीं है उनका जो वो कह रहे हैं जी, तो मेरी नज़र में गुस्ताख़ रसूल नहीं है मौलाना साहब जी, बिल्कुल। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोग जो हैं वो बड़े बड़े नामवर जैद भी थे गई, ठीक है, 100 गाड़ जैद, उन्होंने तो आके ये बातें की, क्या स्टेटस रह गया उनका, क्या फ्यूचर है उनका? बस उनका स्टेटस अच्छा नहीं रहा इन चीज़ों के हवाले से, क्योंकि ज़ेद और बोझ के बिना पर लोग फतवे दे देते हैं हमारे मुल्क में, और जो हक है वो फिर सच रहेगा इंशाल्लाह जी, हक ज़ाहिर होगा। और यह है कि ये जो फतवे वो एक दूसरे पे फतवाबाजी करते हैं ना, उनको चाहिए कि उनसे ये बाज रहे, ठीक है, और ये ऐसा वैसा ना करे, ठीक है जी। आपने जब से इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया था, जी जी, क्या खूबी लगी, क्या ऐसी बात लगी कि एक आलिम दीन कह रहा है कि यार उलमा तो कहते हैं कि ये तो कोई आलिम ही नहीं है, वो ये इंजीनियर है, कोई कहता है प्लम्बर है, कोई कुछ कहता है, ठीक है, आपने क्यों सुनना शुरू किया? कोई डिग्री नहीं थी इनके पास? जी बिल्कुल, मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे सुना है, तो इसके बातों में बहुत असर है, कुरान और हदीस बयान करते हैं और फिर फ़िक्रियत से बालातर होकर दिन की खिदमत सर अंजाम देते हैं जी। कुरान का इल्म तो माशाल्लाह आपके पास भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये कुरान पाक का तर्जमा करते हैं। अभी अभी रिसेंटली इसी ये जो फतवे लगे, कुरान बोर्ड का फैसला है, उन्होंने कहा इसने कुरान की गुस्ताखी कर दी है, वायलेशन की है, तो आपको क्या लगता है, इसको कुरान पढ़ना नहीं आता? नहीं आता है, क्यों नहीं? अच्छा, कुरान ये देख ले, हमारे बड़े बड़े दारों का हाल देखें जी, और बहुत सुना है जी, बेहतरीन अंदाज में कुरान की खिदमत कर रहे हैं, कुरान और हदीस की मुस्तनद रवायात बयान करते हैं इसके जी। मजहबी बैकग्राउंड है आपका, पाकिस्तान से तल्लक है, क्या लगता था ये जो इल्ज़ाम लग गया था, लगता था इंजीनियर सब बच जाएंगे, बाहर आएंगे? हाँ, ये बहुत मुश्किल था, मुश्किल था बचना, लेकिन देखो उन्होंने अपना आखिरी बार खेला, मुखालफीन ने, जी जी, मुखालिफिन ने हाँ आखिरी बार खेला, उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे बचा ले, बिल्कुल बचा लेते हैं। ठीक हो गया, मुलाकात हुई, मुलाकात हो गई, मिले इंजीनियर साहब, मिला, शफकत फरमाई आपने उनसे, सारी बात आप हाल में दीन है। चलो जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद नईम खान। मोहम्मद नईम खान साहब कहाँ से? कराची से। आपका? मोहम्मद ममरेज़ लाहौर से। लाहौर से जी, इकट्ठे हैं जी? इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे आए हैं जी जी। अच्छा जी, आगे भी आए हैं माशाल्लाह जी, आपका चेहरा तो जाना पहचाना है जी, शक्ल लगाए। आप मुझे ये बताएं, 295C लगी इंजीनियर साहब के ऊपर, इंजीनियर साहब चले गए जेल में जी, फतवे भी बड़े बड़े आ गए जी, नईम भाई क्या सोच रहे थे? नईम भाई तो हक जानते थे, 295C जो है वो तो एक हथियार है जो ऐसे लोगों पे इस्तेमाल किया है जो हक की बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि जो अली भाई बयान कर रहे हैं उसके साथ में तस्दीक भी करता हूँ बुक्स के ज़रिए, बुकिश हूँ, अगर वो कह रहे हैं ना बुकिश बनना तो एज ही शागिर्द हूँ जैसा बुकिश होना चाहिए, बाकायदा तस्दीक करता हूँ, फिर जब मानता हूँ, जब उसको सही पाता हूँ तो फिर हक पे आ जाता हूँ। मैं ख़ुद बरेलवी ख़ानदान से हूँ, मेरा सारा पूरा ख़ानदान बरेलवी है, 11वीं करने वाले और दूसरी चीज़ें करने वाले, मगर मैं उससे वाक़िफ़ था, मुझे नहीं पसंद थी ये बात कि नहीं ये गलत है, काम हो रहा है, गलत बात हो रही है, और अल्लाह का शुक्र है फिर ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया है माशाल्लाह 8-9 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या, मेरी फैमिली के माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे इस पे सब तौहीदी हैं, सिर्फ अली भाई पे इत्तेफाक किया। वो फ़िरक़ों की दुकानें वाकई बंद, हमने अपनी तरफ से तो बंद कर दी हैं। हाँ लोगों की हैं, वो आते हैं बीच में कोशिशें डालते हैं दरार डालने की, मगर बच्चों को इस तरह तरबियत की है ना कि वो फ्री हैंड रहें, दीन के मामले तो कम से कम वो उस बात पे यकीन करें जो उन्होंने पढ़ी है या कुछ सुन के उसको ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे, हर बंदा अपनी
कारोबार बेच रहा है, वो जो कहते हैं ना कि मैकडोनल्ड है या KFC है, यकीन करें यही नज़र आता है। वहाँ पे कोई, अब मैं 25-30 साल से जुम्मे खुतबा सुन रहा हूँ, मैंने सिर्फ खिलाफ सुना है कि ये करते हैं, ये करते हैं। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं किन एक अहकामात को मानूँ, कभी भी नहीं ऐसी बात है। मिंबरों से नहीं सुन पाया मैं, सिर्फ यही सुन सका तनकीदी कि वो जो हैं वो यूँ करते हैं और वो जो हैं यूँ करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, वो दूसरे फिरकों की बात। जी ऐसे ही अपने फिरके को कभी बुरा नहीं कहेंगे। अच्छा, आपको लगता था जब 295C लगी, इंजीनियर साहब अंदर भी चले गए जी, क्या लगता था आएंगे वापस? पाकिस्तान का जो एक कानून जिस तरह है सर, मतलब हथियार बहुत बड़ा था, हथियार बहुत बड़ा था, आजमा लिया। हाँ, इन्होंने आजमा लिया और अल्लाह का शुक्र है। तो क्या यकीन करें, अली भाई के जाने से हम लोग भी क्रिटिसाइज़ होते थे, क्योंकि हम दावत काम तो हम भी कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि यार ये अब अंदर वाली बात जो अली भाई ने भी कही है कि समझते थे कि हम अंदर चले गए। आज खुद ही परेशान है, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते क्योंकि हम सबको अपना भाई समझते हैं। हमने आज तक कभी कोई फ़र्क नहीं रखा कि ये बरेलवी देवबंदी। हमने कहा वहीं जहाँ हो रहो, मगर हक बात को मानना सोचो कि हाँ हक बात लिखी है बुक्स में, तो फिर उसको मानो, अटेंड करो, उसको उस पर अमल में लेके आओ, बातों तक ना रहो। वो एक अमली ज़िंदगी होना चाहिए आपकी, जो उस बातों से निकल के, किताबों से निकल के अमल में आ जाए। और अल्लाह का शुक्र है जो अली भाई से सुना या समझा है उसको अमल में लेके आएँ, और अपने लिए भी लाएँ, अपनी फैमिली के लिए भी लाएँ, चाहे वो 8 साल की या 12 साल की बेटी हो या 30 साल का बेटा। माशाल्लाह मेरा 5 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा 30 साल का, एक छोटी बेटी 18-19 साल की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुलाकात कर ली? जी। क्या लगता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया इंजीनियर साहब का? ये वो बात कह रहे हैं आप कि नामुमकिन है। वो उनके साथ तो उठ बैठ के और इस तन्हाई में बात हो गई, उनकी नेचर अलग है। वो हैं जो मतलब अपने इस अमल में ना अपनी जान तक लुटाने को कुर्बान है। हम नहीं चाहते कि, तो इन्होंने एक हथियार खेला था ना, हमारे दिलों से पूछें आपके, हमारे दिल पे क्या गुजरी है जो 101 या 153 गुजरे हैं ना। सही बात है जी, बिल्कुल। ऐसा था कि जैसे यतीम नहीं हो जाते, ऐसे दीनी लिहाज से बिल्कुल ऐसा। हाँ, मेरे वालिद साहब भी नहीं है, वाकई यतीम हूँ, मगर यहाँ वाकई वो फील हो रहा था कि यार ये ज़्यादती हुई है। अब वो ना यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन थी कि आप ये एहतिजाज करना, ये एजिटेशन करनी है, ना हमें सिखाया गया इतने सालों से। वो यही सिखाया गया कि भाई आप वही जो कहा गया वो सोशल पे काम करते, सोशल मीडिया पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा भी हुआ, उसका फ़ायदा बहुत हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने शायद चाल चली है हमारे ख़िलाफ़, ये उनके अपने ख़िलाफ़ और हम खुद भी देख रहे हैं। मैं तो वो गवाह हूँ कि जिसने भी नेगेटिविटी आपकी चाहिए ना कि हमारे अली भाई के साथ के लिए फैलाए, वो ज़लील ख्वार होकर देखें। ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप कुछ दोस्ती हो गई, कुछ दुश्मनी हो गई, मगर वो ज़लील ख्वार ज़रूर हो। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। ये अभी जो रिसेंट वाक़या गया, महीने में हमारे साथ तो आ गए 3 महीने के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर जो गए हैं ना, जो अभी गायब हैं या बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो नज़र भी नहीं आ रहे, बोल भी नहीं रहे हैं। आप यकीन करें, अल्लाह में करम करे अपने। चले जी, बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।